Even you can write your queries in the chat box so that जब हम last 20 minutes में आपकी queries को resolve करें, so after the podcast जो हम आपकी queries को resolve कर पाएं. Aditya, please give permission to Sanket Bhaiya. He's joining, I guess. Oh, hi Bhaiya. Hello, team. Am I audible? Yeah, you are audible. Shall we Hi, hi. begin? Yeah. Yeah, sure. All right. Hello, everyone. I am Khushbu Rai, chair of ACMW, and I'm super excited to welcome you all to episode 2.0 of FANG Weekend. So, our theme today is something every student can relate to, from failures to offer. And honestly, this couldn't have come at a better time. With placement season at its peak, everyone from final year batchmates to junior just starting out, they really want to know how do we actually prepare, how do we can stand out, especially coming from a tier 3 college. And we have really felt that pressure, the doubts around resume shortlisting, ATS filters, coding versus projects, and low CGPA versus high CGPA students. So today we have someone with us who has broken through all of that. So before I say more, I would love Sanket Bhaiya to introduce himself and share a bit about his journey in his own words. It's over to you. Hi, hi, everyone. So I'm Sanket Singh. Currently, I work with Meta London. I recently joined Meta. I'm part of the revenue management team here. I work as a software engineer, and prior to Meta, I worked with Microsoft. I worked with Google. In Google, I was part of the Google Pay India consumer application team. Any transactions that you do with the Google Pay applications, we used to contribute to that on the full stack end. In Microsoft, I was part of the billing infrastructure team of Microsoft Bing Ads, where we used to develop everything around the infrastructure needs in terms of the pipelines that used to process all the billing related data coming through Bing Ads. So yeah, this has been the recent set of work that I have done. I graduated from MAIT in 2020 in computer science. So yeah, that's a quick introduction about me. So with that powerful story in mind, let's dive into in the today's theme how to turn failures into offers. So thank you, Bhaiya, for joining us. So let's start with your journey. Back in your student life at GJS IPU, did you ever imagine that one day you would have offers from Meta, Google, and Microsoft? What was the very first step that started this journey? The curiosity. So when I joined Mate in 2016, I guess. So the last batch, the fourth year batch, there was some placement statistics coming out from the 2016 batch that got passed out. The highest placement, at least from the campus, was with a company named as PayU. I believe everybody must be aware about PayU, the payment Yeah. infrastructure company, right? But there were still a few folks from my senior batches that got placed to Microsoft, right? And a few of them were at that, like when I joined college, some of them were interviewing for Amazon. I got access to a few of them. So what I realized was that placement scenario in the college might be a bit average altogether, but students are definitely getting some opportunities. Maybe like even if 5 or 10 out of the complete batch is getting some opportunities, I believe that was enough to give a spark to the fact that if you are doing good efforts, things can turn around altogether. So I believe that like the college placements might not be the only thing that I would like to rely to. Also, I was totally open to the fact that I am not just too much aligned to work with the big tech.
altogether, because maybe eventually things will land up to the big tech. I wanted to make sure that in every semester, after every semester, I'm involved in some or other type of engineering driven work to, let's say, some startups, or let's say doing some kind of like projects altogether, so that like eventually the journey might land up to let's say the big tech. But I was open to the fact that I might have to start from very small startups altogether, or maybe I might have to start with let's say very less in pay altogether, because of the average college scenario, because you don't always assume the best case. You have to keep in mind your worst case also. But yeah, because of the seniors, like there were 2-3 only, but they were enough to spark the fact that if you are doing good efforts, you will definitely get the opportunity altogether. So that was the scenario when I joined. सर आपकी जर्नी एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है जिससे हम आईपीयू के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे. लाइक रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इज द मेक और ब्रेक मोमेंट. आपने अपना रेज्यूमे कैसे टेलर किया था सो दैट इवन एटीएस फिल्टर इट, रिक्रूटर ऐसा क्या नोटिस करते हैं रेज्यूमे में जिससे हम स्टैंड आउट कर सके क्राउड में? लाइक प्रोजेक्ट वर्सेस कॉन्टेस्ट, कौन सबसे ज्यादा वेटेज देता है? हाउ इम्पोर्टेंट इज विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन एंड नेटवर्किंग? So will you tell something on this? So resume वाले part पे I believe कि so my resume got evolved a lot of times during my college days. मतलब I made sure कि मतलब एक basic bare minimum resume मैं prepare कर लूँ after the second semester or mid of the third semester, क्योंकि I thought that I'll start applying to internships, and to do basic application also you need some resume, right? So majorly I started with a very basic Google Docs template, and then what I started looking for was better resume. मतलब जिन लोगों के resume मुझे लग रहा है कि हाँ भाई shortlist हो रहे हैं, या फिर जिन लोगों के मतलब जो लोग ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं और उन्होंने कौन से टाइप के resume अपने सबमिट करे थे, that resume I take a look at, and उसके हिसाब से अपने resume evolve करना start करा मैंने. So throughout the 4 years I evolved a lot of templates. मतलब I still remember, मतलब मैं जैसे जब बिग टेक में अप्लाई करता था, फॉर एग्जांपल इन थर्ड ईयर आई अप्लाइड, like I tried to take reference, तो काफी टाइम रिप्लाई नहीं आ रहा होता था. But eventually things got improved, and I learned about a lot of things that can make a resume better. Like मतलब मैं किसी को भी कोई मुझसे पूछता है कि resume में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, तो I always ask don't write obvious things. मतलब कोई चीज अगर obviously calculatable है कि मतलब ये चीज है तो ये तो होगी ही, I don't write that. I don't space in that. मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स है वो अपने रिज्यूमे में रिएक्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद HTML भी लिख देते हैं. इट्स एन ऑब्वियस थिंग. मतलब तुमने HTML पढ़ी होगी तभी तुम्हें रिएक्ट आती है. मतलब इट्स इजीली डिराइवेबल. राइट. एंड आई मतलब एक और चीज, मतलब मुझे अगेन मेरे सीनियर्स या मेरे मेंटर्स ने ये समझाई थी कि डोंट ओवरसेल. मतलब तुम 5 लैंग्वेजेस मत लिखो, बिकॉज इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज समबडी जिसको उस 5 में से एक तुमसे 2x भी बेटर आती है, तो वो तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा इंटरव्यू के ले जाएगा. You might be aware about a lot of languages, क्योंकि मतलब कॉलेज में 3 लैंग्वेज पढ़ा देते हैं, फिर एक आधी लैंग्वेज तुम एक्सप्लोर कर लेते हो. तो you might be aware about a lot of languages. अवेयरनेस होना और इंटरव्यू में उसके आंसर देने में बहुत फर्क है. जैसे मैं कभी मतलब मैं आज भी मतलब अब रिसेंटली लाइक लास्ट 6 मंथ से अगर जब अप्लाई किया था, मतलब जैसे मेटा में जब अप्लाई किया था तो मैं जावा लिखने लग गया. बट वरना मैं जावा भी नहीं लिखता था. ऑल्दो आई वर्क विद जावा फॉर लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स, बट मैं जावा नहीं लिखता, बिकॉज मैंने कॉलेज में उतना टाइम स्पेंड नहीं किया था जावा के साथ जितना मैंने जावास्क्रिप्ट या सी++ के साथ स्पेंड किया था. तो इफ यू हैव नॉट स्पेंड इनफ टाइम, देन इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क यू हार्डर क्वेश्चन. उनके सामने देखो गूगल खुला हुआ है, तो वो तुमसे कुछ. सो आई मेक श्योर कि कॉलेज डेज में आई नो 1 लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, लाइक एंड टू एंड. मतलब ऐसी लैंग्वेजेस थी जिन पे मैं काम ज्यादा करता था, बट मैं उनके ऐसे एंड टू एंड गारंटी नहीं लेता था कि इसके तो सारे सवाल मैं जवाब दे दूंगा. So I made sure कि जैसे for example I picked JavaScript की, मतलब JavaScript में I made sure कि मतलब end to end, तो मतलब 10 क्वेश्चन पूछोगे तो I will be able to answer 7 out of them, और मतलब रीजनिंग के साथ. तो वो चीज मैंने इंश्योर करी थी कि रेज्यूमे में I try to reflect that particular aspect, कि I'm not overselling. कोई मुझसे पूछता है कि मतलब how would you scale yourself on a rate of 10 in JavaScript, तो मैं ऐसे 9 नहीं बोलूंगा. मतलब कॉलेज को अच्छा 9 out of 10 नहीं होता JavaScript में जब तक उसने मतलब प्रोडक्शन ग्रेड JavaScript पे काम नहीं किया. तो वो चीज मैं इंश्योर करता था. जैसे अब डेटाबेस है तो मैं डेटाबेस मेंशन करना है, तो आई डोंट राइट लाइक 10 डेटाबेसेस. मतलब मैंने 10 डेटाबेसेस पे काम किया, बट मेरे को 10 के 10 का इंटरनल नहीं आता. मैं कॉलेज में था तब भी MySQL लिखता था, आज भी MySQL लिखता हूँ, क्योंकि उसका मैंने एंड टू एंड पढ़ा है. मतलब उसमें 7 out of 10 क्वेश्चन में आंसर कर दूंगा. बट अगर हो सकता है कि तुम मुझसे, मतलब मैंने किसी टाइम सीरीज DB पे काम किया है, बट तुम उस पर मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है 7 out of 10 में आंसर ना करूं, बट मुझे काम करना आता है. काम करना आना और इंटरव्यू में गेम क्रैक करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. So you don't oversell, you don't write obvious things.
और यू ट्राई टू गिव नंबर्स, मतलब लोग एक चीज का काम करते हुए ध्यान ध्यान नहीं देते कि मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसका क्या मेट्रिक निकल रहा है, और फिर वो Okay. लोग काम करते हैं और बस काम को रैंडमली लिख देते हैं कि मैंने ये बनाया था। बट आई Hmm. मेड श्योर कि मतलब मैं जहाँ पे भी काम कर, मतलब अभी मेटा में भी इफ आई वर्क, मतलब मेरी और मेरे मैनेजर के बीच में ये डिस्कशन सबसे पहले होती है दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट Yes. नीडल इट विल बी एबल टू एक्चुअली मूव, क्योंकि Yeah. वो पता काम खत्म हो गया तो रिज्यूमे में लिखने के लिए रहेगा कि यार मतलब ये इम्पैक्ट ड्राइव हुआ था, वरना तुमने तो बहुत बहुत क्रेजी कोड लिखा था, बाहर किसी को दिखने तो वाला है नहीं, तुमने जो Right. मेट्रिक करा था वही पता लगेगा बस। तो आई बिलीव मेट्रिक ओरिएंट, जब तुम इंटर्न वगैरह कर रहे हो, कोई फ्रीलांस वर्क भी कर रहे हो, ट्राई टू सी द मेट्रिक, मतलब कि किसी Hmm. तरीके से तुम देखो भाई किस स्केल पे तुम क्या काम कर रहे हो, क्या बिजनेस इम्पैक्ट तुम क्रिएट कर रहे हो, उसको तुम रिज्यूमे में लिखो दैट यू डिड एक्स दैट इम्पैक्टेड वाई ऑन अ स्केल ऑफ जेड, इस टाइप का चीज होना चाहिए। और ये चीज मतलब आई नो कि इम्प्रूव करते करते आती है, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स पता होगा, बट वंस यू नो कि इस तरीके से काम करना चाहिए, देन फ्रॉम हेयर यू शुड ट्राई टू मेक श्योर कि तुम मेट्रिक ड्रिवन इम्पैक्ट कर रहे हो। तुम्हें बस कोई बोल रहा है कि ये फीचर लिख दो, तुमने पूछा नहीं कि क्यों लिख दो, फिर जब Hmm. फीचर खत्म, तुमने इंटर्नशिप खत्म कर ली, अब तुम्हें रेज्यूमे बनाना है तो तुम्हें लग रहा है कि अब कैसे उसको इम्पैक्टफुली ड्राइव करें, वही तुमने अपने मैनेजर से 15 मिनट बात करी होती कि भाई मतलब ये क्यों करना है हमें, क्या Yeah. चीज इससे ड्राइव होगी, सेल्स ड्राइव होगी, बिजनेस Hmm. की कोई कॉस्टिंग बच जाएगी, कोई इंजीनियरिंग एफर्ट बच जाएगा। तो दिस इज हाउ द रिज्यूमे शुड बी स्ट्रक्चर्ड। और आई Basically, बिलीव you should know the why. कि ऐसा क्यों हो रहा है, include numbers. हाँ, मतलब इंक्लूड नंबर्स, इंक्लूड द इम्पैक्ट। और जैसे मतलब अब तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट्स वाला आई बिलीव तुमने कुछ मतलब मोस्टली बच्चे दोनों में से कुछ नहीं कर रहे थे, तुमने Yes. कुछ भी कराया तो मतलब वो लिखो पहले, तो मतलब एक है कि कुछ करो, कुछ करने के बाद दो, मतलब ऐसा मतलब आधे बच्चे उसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि ये करें या ये करें, भाई कुछ तो कर लो, Right. लाइक डू Thinking समथिंग, डू चला जाए. समथिंग। True. एवरीबॉडी वांट्स टू सी दैट वेदर यू आर सीरियस फॉर द इंजीनियरिंग एफर्ट और नॉट। आजकल मतलब Yeah. एआई वगैरह काफी आ गया है, तो इट्स इजी टू एक्सप्लोर थिंग्स, मतलब पहले तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स कोड समझने में बहुत टाइम लगता था, अब उतना टाइम नहीं लगता है। तो हाउ यू आर इम्प्रूविंग योर इंजीनियरिंग क्राफ्ट विद सो मेनी इंटरेस्टिंग टूल्स जो इजी बना चुके हैं, द टास्क इज रिलेटिवली इजी, यू जस्ट हैव टू पुट अ बिट ऑफ मोर ब्रेन टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, और काम करना तो आसानी हो गया। तो पीपल Yeah. वांट्स कि भाई दे हायर इंजीनियर्स, तो आई बिलीव even you have a very good competitive programming profile, you will get shortlisted to relevant companies correspondingly। तुम्हारी बहुत project driven I profile होगी guess तो there is a मतलब network there will issue be from my. I'm not sure if I am audible or not, but Yes, you are audible. Yes, please go yeah, ahead. yeah, so like same thing that matlab if you have a project Okay. driven profile, so relevant companies will still shortlist you। make sure you do something like you matlab an object stays in a state of rest if there is no external force, so don't be in the state of rest, किसी तरफ से Yeah. external force लगाओ, या तो competitive लगाओ या तो तुम Yes. project वाले का part करो। I believe doing projects is good, you get to know about real world engineering applications। Got it. And how important is visibility on LinkedIn and networking? Like the companies who are not visiting our campus, so how we can approach them or they reach out to us on LinkedIn? So what should we do unique, which set us apart from a crowd? Because LinkedIn is the second resume, I guess, the screening Yeah, process. makes sense, मतलब LinkedIn पे you As you should have make sure also that if found presence on LinkedIn and yeah, YouTube. definitely, like I totally resonate with the fact that LinkedIn is important। what I believe is if somebody has made somebody has made their resume good, वो Yes. मतलब बहुत कम एफर्ट में लिंक्डइन अपना बढ़िया बना लेंगे क्योंकि उन्होंने resume पे अपनी मेहनत कर लिया। Yeah. बट आई बिलीव यू शुड ट्राई टू रीच आउट टू पीपल फॉर रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं एक सिंपल केस स्टडी बताता हूँ कि अगर मतलब टीयर 2 या बियॉन्ड कॉलेज से, मतलब टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से तुम अगर HFT में अप्लाई कर रहे हो, लाइक तुम टावर रिसर्च जेन स्ट्रीट में ऐसी टाइप की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो 99% तुम्हें कभी कॉल नहीं आएगी, मतलब Yeah. बिकॉज दे इधर हायर फ्रॉम, बिकॉज उनका स्ट्रीम मतलब वो उनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम टीयर 3 से हो तो तुम्हें लगता है कि अच्छा हमें हायर नहीं कर, वो नहीं करना चाहते यार। उनको है Yes. कि या तो तुम टीयर 1 कॉलेज से हो या फिर कोई जेन स्ट्रीट का बंदा तुम्हें रेफर करना चाहता है, वो जानता है कि भाई इसमें टैलेंट है, तो वो रेफरल्स को ड्राइव करते हैं एंड वो टीयर 1 स्टेटस को सीधा ड्राइव करते हैं। हेंस दे पे ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंगली, मतलब वो फैंग से डबल पे करेंगे, बट वो लेंगे भी मतलब एकदम वेरी सेलेक्टिवली, एक्सट्रीमली हार्ड इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो। तो Got it. मतलब उस केस में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मतलब यू नो कि किस कंपनी को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। कुछ कंपनीज है जैसे जोमेटो है, जोमेटो का अब शायद प्रोसेस चेंज हो गया है, बट बीच में जोमेटो के करियर पेज पे तुम जाओगे तो Yes. कोई लिंक, कोई करियर का कोई लिंक नहीं होता था कि मतलब Yes. ये Yes. जॉब है,
यू ओनली गो थ्रू रेफरल. कोई जोमेटो का बंदा रेफर करेगा तभी तुम जोमेटो में इंटरव्यू लगेगा तुम्हारा, और लग जाते थे, बट बंदे उतना भी एफर्ट नहीं मारते. सो आई बिलीव कि इफ यू हैव कंप्लीटेड योर रिज्यूमे वर्क, वो सेम वर्क मोटा मोटा तुम्हें लिंक्डइन पे अपना स्ट्रक्चर करके रखना होता है. देन ट्राई टू रीच आउट टू पीपल. मतलब आई reached out to 100 Amazon people and nobody replied in like when I was in third year. किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं करता. मतलब so you cannot just sit back कि मतलब अरे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो क्यों करेंगे? मतलब तुम्हारे जैसे और मतलब मेरे टाइम पे तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी 2017 18 19 में, लोगों को इतना लिंक्डइन का नहीं पता होता, बट आजकल सबको पता है. तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमने 10 लोगों को मैसेज करा, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, तो यू आर लाइक कि अरे लिंक्डइन से तो काम नहीं बनता है. मतलब तुम्हारे जैसे 1000 बच्चे उनको उन्हीं 10 को पिंग कर रहे हैं क्योंकि वो somehow सर्च में सबसे ऊपर आ रहे हैं. तो you cannot just rely on those 10 people. You have to keep on trying. बाकी आजकल काफी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स आ गई हैं जो काफी रिमोट जॉब्स वगैरह जिनसे अच्छे से रिप्लाई आ जाता है. यू शुड नो कि कौन सी कंपनी में प्रोबेबली हायरिंग सही तरीके से ड्राइव हो रही होगी. मतलब ट्राई टू बी अवेयर ऑन द न्यूज. फॉर एग्जांपल इफ यू नो कि यार मतलब जेप्टो एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, तो जेप्टो अगर एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है तो काम करने के लिए बंदे चाहिए. तो भाई जेप्टो के बंदों को तुम रीच आउट करो कि यार जेप्टो में कैसे ऐसा हो रहा है. अगर तुम्हें दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल गूगल में काफी लोग हायर हो रहे हैं, गूगल में काफी लोगों का ऑनबोर्डिंग का आ रहा है लिंक्डइन पे, तो प्रॉब्ली गूगल इज स्टिल हायरिंग. मतलब इट्स समथिंग कॉल्ड एज मोमेंटम. तो अभी उन्होंने काफी हायर करा, हो सकता है थोड़ी और हायरिंग हो, तो ट्राई टू अप्लाई टू गूगल. तो यू शुड बी अवेयर कि मतलब कहाँ हायरिंग चल रही होगी, क्योंकि करियर स्पेस पे क्या होता है कि पुरानी पोस्टिंग भी डली होती है. सो यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन इज नॉट जस्ट अबाउट कि मतलब लोग तुम्हें रीच आउट करेंगे. यू शुड बी अवेयर कि मतलब लिंक्डइन पे क्या चल रहा है, कहाँ पे हायरिंग है, कहाँ पे हायरिंग हो रही है. लोगों मतलब बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आज के डेट में जहाँ पे यू कैन इजीली फाइंड कि कहाँ पे हायरिंग है. लोग रेफरल देने के लिए भी ओके होते हैं. यू जस्ट हैव टू रीच आउट. उनके कमेंट सेक्शन में जाके आई एम इंटरेस्टेड कमेंट करके कुछ नहीं होता है. दे कांट सी योर रेज्यूमे. तो ट्राई टू पिंग देम, ट्राई टू सेंड योर रेज्यूमे, ट्राई टू कोल्ड ईमेल. मतलब जितनी भी तुम एचआरस को रीच आउट कर सकते हो, बंदों को रीच आउट कर सकते हो, डू इट. लिंक्डइन विल बी वेरी हेल्पफुल. This you told me the scenario about when we are reaching out to the recruiter. What about when recruiters are reaching out to us? Like as I belong to, let's suppose tier 3 college only. So what I can see कि हमें अपनी visibility create कर रहे हैं. ऐसा वो हम मेरे में क्या देख रहे हैं कि वो मुझे reach out कर रहे हैं. So can you tell me the parameters behind it? तो वैसे लिंक्डइन में मतलब आई वर्क विद लिंक्डइन. सो लिंक्डइन हैज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज लिंक्डइन रिक्रूटर सर्विस. तो रिक्रूटर्स के पास अपना डैशबोर्ड होता है. उस डैशबोर्ड पे दे हैव क्राइटेरियाज टू फिल्टर पीपल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो इफ योर प्रोफाइल इज मतलब फिल्टर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं. मतलब दे माइट बी फिल्टरिंग ऑन द फैक्ट कि यार ये एक्स या करंट इन सेट ऑफ कंपनीज में से हो. लेट्स से दे हैव अ पूल ऑफ 100 टॉप कंपनीज जो किसी कंपनी को लगती है कि यार इस कंपनी का इंजीनियर आएगा तो बढ़िया रहेगा. तो उस ग्रैनुलर लेवल के फिल्टर से लेकर कीवर्ड लेवल फिल्टर हर चीज दे कैन डू. So I believe if your LinkedIn is updated, that is good. But मतलब मैं मतलब सीधा से बताऊंगा, मतलब मेरे को कॉलेज के टाइम कोई रिक्रूटर डायरेक्टली रीच आउट नहीं करता था. कि मतलब किसी रिक्रूटर का खुद से आया कि संकेत वी वुड लाइक टू वर्क टू यू. मतलब मेरे साथ नहीं हुआ सर. तो मे बी देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ ऐसा होता हो. मेरे साथ ऐसा नहीं होता था. बट हाँ मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब मैं 100 लोगों को मैसेज करता था. आफ्टर सम टाइम उन 100 में से 3-4 का मेरे को रिप्लाई आने लग गया था. तो एटलीस्ट इन माय केस इट वाज मोर लाइक आई एम रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. आफ्टर वर्किंग 2-3 years तो उसके बाद होने लग गया कि मतलब रिक्रूटर्स खुद से रीच आउट करते हैं. बट वो भी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल इन मेटा ऐसा नहीं था कि रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया. इट वाज नॉट लाइक दैट. ठीक है. ऐसा गूगल में ऐसा नहीं था कि किसी गूगल रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया था. ऐसा नहीं था. ठीक है. सो मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत ज्यादा सिनेरियोज नहीं हुए हैं. बिकॉज अगेन देयर माइट बी वेरी रेलेवेंट प्रोफाइल्स जो मेरे से ज्यादा ऊपर शॉर्ट मतलब लिंक्डइन पे फिल्टर हो रही होंगी. सो आई बिलीव मी रीचिंग आउट टू रिक्रूटर्स अदर देन वेटिंग कि वो रीच आउट करेंगे. हाँ मतलब इफ आई एम एबल टू मतलब व्हाट आई मेड श्योर कि इफ आई एम एबल टू कनेक्ट टू समबडी देन मतलब मैं वो वहां से कन्वर्सेशन कन्वर्ट कर लूं कि यार मतलब मेरे को रेफरल चाहिए या आप मेरा प्रोसेस स्टार्ट करा दो. फॉर दिस आई समटाइम्स आल्सो यूज्ड टू पिंग द सीईओ डायरेक्टली. मतलब अब वो कंपनी बंद हो गई है. देयर यूज्ड टू बी अ कंपनी कॉल्ड एज डंजो. सो डंजो बंद हो गई है. मतलब वो बैंकरप्ट कर गए हैं. बट मैंने डंजो के सीईओ को डायरेक्ट पिंग करा था कि मतलब ऐसा ऐसा है, मैं 4th ईयर में हूँ, मेरे को ये काम मैंने करा है और आपका टेक स्टैक वगैरह बढ़िया लगता है. इफ पॉसिबल ये आपके करियर साइट पे ये ओपनिंग है, कैन यू रेफर मी. तो सीईओ ने मुझे डायरेक्ट रेफर कर दिया था. मतलब विद इन 2 hours मेरे को मैसेज आ गया था कि आपका ये ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट है, इसको दे दो. तो मतलब मैं अपनी तरफ से जितना रीच आउट कर सकता था करता था. आई डिडंट यूज्ड टू रिलाई अ लॉट कि
रिक्रूटर रीच आउट करेंगे, क्योंकि मेरे साथ इंटरेस्टिंग ऐसा हुआ नहीं, तो आई डोंट बिलीव कि वो करेंगे। There is also one myth कि some people totally rely on referrals and they think यार रेफरल लगने के बाद तो हम पक्का ही शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, बट आज के टाइम पे एआई इतना इवॉल्व हो चुका है कि एचआर से पहले एआई ही उसे वो कर देता है कि रिज्यूमे स्कैन कर देता है। सो जब हम रीच आउट करते हैं तो ऐसा हम क्या मैसेज कोल मेल में डालें कि हमारे मैसेज को एटलीस्ट लोग एक्सेप्ट तो करें, एंड रेफरल के बाद ऐसा क्या होता है कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा? ये बहुत लोगों मतलब का मेरे एक फ्रेंड ने रिसेंटली जॉब स्विच लेनी थी, तो मतलब पहले उन्होंने एक बेसिक रेज्यूमे बनाया, मतलब ऐसे मोटा मोटा लिख दिया, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनके पास ऑलरेडी थोड़े बहुत बिग नेम्स एग्जिस्ट करते थे रेज्यूमे में, फिर भी ओके कॉल नहीं आती थी। मतलब हाँ रेज्यूमे से डायरेक्टली अप्लाई करते थे और नहीं कॉल आती थी। नहीं बट आती। रेज्यूमे को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करा और रेज्यूमे में रेलेवेंट चेंजेस करे, आधा एक घंटा लगा के बैठे और हमने उसका रेज्यूमे अपडेट करा, एंड देन इमीडिएटली द शॉर्टलिस्टिंग स्टार्टेड कमिंग अप। तो डेफिनेटली पहला फैक्टर तो रेज्यूमे होता है, क्योंकि एटीएस को मतलब रेज्यूमे को स्कैन करेगा एंड ओके रेलेवेंट कीवर्डिंग वगैरह बेसिक कीवर्डिंग करेगा। मतलब यू डोंट नीड टू गो टू, मतलब मैंने आज तक ऐसा नहीं करा है कि किसी एटीएस वेबसाइट पे जाके ऐसे अपना स्कोर निकाला कि मेरा स्कोर 85 से यस ऊपर आ रहा है। मेरा स्कोर शायद 60-65 आ रहा होगा, आई एम डेफिनेटली फिर श्योर, मैं भेज दूंगा। सेलेक्टेड बट आई मेक श्योर कि मेरा रिज्यूमे अगर किसी कंपनी में पहुंचता है तो मेरे को कॉल पक्का आ जाती है। यस मैंने बहुत ही हार्ड, मतलब मैं एचएफटी में तो अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे मे बी अभी आई डोंट वांट टू वर्क। बट मोस्टली कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने अपना रिज्यूमे कहीं भेजा हो, बंदे ने पढ़ लिया और उसके बाद एटीएस वगैरह से पास ना हुआ, ये सब केसेस मेरे साथ नहीं हुए। तो क्योंकि वो रिज्यूमे बनाने के टाइम हमने, मतलब मैंने अपनी तरफ से एक एफर्ट डाला हुआ है कि आई कीप ऑल द रेलेवेंट पॉइंटर्स। तो मतलब अगर ओके तुमने रिज्यूमे लेवल पे चीजें सॉर्ट करी हुई तो एटीएस वाली स्क्रीनिंग यू गो थ्रू। एक चीज तुम कर सकते हो कि जो भी पोजीशन के लिए यू आर अप्लाइंग, try to optimize your resume according to that। ओके मतलब if you have the relevant experience of front end और front end की प्रोफाइल है तो थोड़ा सा फ्रंट एंड ओरिएंटेड बना लो resume, that helps in scoring a bit better। बाकी मैं तो कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड मैसेजिंग में जस्ट ये लिख देता हूँ कि करंट मैं इस प्रोडक्ट पे स्केल पे काम कर रहा हूँ, लाइक लेट्स से आई एम वर्किंग विद गूगल पे एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई वर्कड। क्या मेट्रिक मैंने रिसेंटली मूव करा है कि मतलब लेट्स से एक्स मिलियन ट्रांजैक्शंस पे मैंने ये सक्सेस मेट्रिक इंप्रूव करा है। पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ये है ये, और मैं मेक श्योर करता हूँ किसी को भी मैसेज करते टाइम आई हैव अ करियर साइट लिंक, मतलब ये जॉब लिंक पे मेरे को रेफरल चाहिए एंड ऑल द कि मतलब उसको कहीं और ना जाना पड़े, वो सीधा लिंक पे क्लिक करके मुझे रेफर कर पाए, इतना एफर्ट मैं कर देता हूँ। यस ऑल दीज थिंग्स आई ऐड। मतलब तुम जीपीटी से लिखवा सकते हो एक यस शॉर्ट कंसाइज मेथड में, पूरी वो ऐसे 100 वर्ड्स का आर्टिकल भी लिखने की जरूरत नहीं है। यू कीप ओके इट शॉर्ट, यू कीप इट कंसाइज, यू स्टिक सेल विद योरसेल्फ, गॉट इट कि मतलब मैंने ये करा है, ये मुझे आता है और मेरे को लगता है कि आपकी कंपनी में ये जो काम है मैं अच्छे से कर लूंगा। हाँ, यस गॉट इट। बिफोर रिज्यूमे स्क्रीनिंग, लाइक अभी तो हम लोग फाइनल ईयर में, बट जो हमारे जूनियर्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, वो जानना चाहते हैं कि रोड मैप ऐसा क्या है, हम क्या प्रिपरेशन करें अगर हमें एसडी रोल में जाना है, हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, फाउंडेशंस कैसे क्लियर करें? मतलब फाउंडेशंस में आई बिलीव मतलब कॉलेज में आई एम नॉट श्योर कि अब करिकुलम चेंज हो गया हो तो, क्योंकि मैंने कॉलेज का करिकुलम 6 साल से नहीं देखा है, बट आई बिलीव 6-7 सब्जेक्ट होते हैं जो मतलब तुम्हें एकदम बाय हार्ट पढ़ने चाहिए। एक तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है, बाय हार्ट यस पढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए ढंग से। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना चाहिए और डीबीएमएस पढ़ना चाहिए। एक और, अगर तुम सीएस में हो तो तुम्हारे पास एक और सब्जेक्ट आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हाँ ये 6 सब्जेक्ट में पढ़ने ही चाहिए। मतलब काफी बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पढ़ते और यस मतलब डेवलपमेंट करते रहते हैं, ये कुछ कुछ करते रहते हैं। वो इंटरव्यू में अगर थोड़ा भी इधर उधर क्वेश्चन थोड़ा सा डीपर जाता है तो वो नहीं समझ पाते कि भाई, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क का फाउंडेशन नहीं करा। वो बोरिंग होता है, मेरे को पता है। ट्रू बट तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम उतना पढ़ना चाहिए जितना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है। मतलब तुम्हें सर्किट बोर्ड लेवल पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेवल का तुम्हें आना चाहिए। और मेरे ख्याल से मतलब ये 6 सब्जेक्ट्स बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैरामीटर्स के बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी कवर करते हैं। तो अगर तुमने ये सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़े हैं, तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे मतलब लीड कोड लेवल एफर्ट भी मार रहे हो, मतलब यस मेरे को लगता है कि बहुत मतलब अगर तुम्हारा गोल है जॉब लेना तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे सर मार के ऐसे बहुत कुछ नहीं चेंज होता आजकल। यस अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज अ स्पोर्ट पसंद है, मतलब तुम्हें वो रश बढ़िया लगता है, वो 3 घंटे बैठ के वो तुम्हें रेस बढ़िया लगती है, वो लीडर बोर्ड पे ऊपर नीचे जाते हो, ट्रू यू डू दैट। मतलब मैं बिल्कुल ऑन हूँ, और किसी कोई कॉम्पिटिटिव करता है तो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। बट अगर तुम वो बस इसलिए करते हो क्योंकि भाई तुम्हें इधर उधर से सोल्यूशन मतलब खाली कॉपी पेस्ट करने हैं और बस तुम्हें लगता है तुम्हारी रिज्यूमे प्रोफाइल बढ़िया हो जाए, वो कोई वेस्ट है। मतलब वो एफर्ट फिर वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। राइट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उसको करनी चाहिए दैट लाइक्स द स्पोर्ट। वरना तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर मतलब कोर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पे एफर्ट मारो, आजकल एआई से काफी सारा कोड वैसे भी हो जाता है। तो यस यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। मतलब
कंपनीज को भी लीड कोडर नहीं चाहिए कि वो बंदा मतलब लीड कोड पे 1000 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन मतलब वो पाइथन का एक सर्वर बूट नहीं कर सकता, उसने पाइथन रिज्यूमे में लिखा हुआ है, उसका वेस्ट है वो बंदा कंपनी के लिए। मैं बस ये बता सकता हूँ। हाँ, कंपनीज मेट्रिक में ये रखती हैं कि वो डीएसए पूछती हैं बिकॉज दे आल्सो वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो तुम डीएसए पढ़ो मेरे हिसाब से। अगर तुम मतलब मैं फर्स्ट ईयर में दबा के डीएसए पढ़ा था, मतलब सारे डेटा स्ट्रक्चर जो रहे, मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे मतलब ग्राफ खुद से बना सकता था और ग्राफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता था। इतना मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिपेयर तो किया था। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, मतलब अच्छे से डिटेल में जाके 1-2 सेमेस्टर लगा के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो एंड देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब तुम देखो कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने में क्या एफर्ट लगता है। मतलब अगर तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बस क्रड ऐप बनाए जा रहे हो कि मतलब एक होटल है, होटल बन जाता है, फिर वो एक उसकी बुकिंग बन जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिंपल क्रड नहीं होना चाहिए। तुम कोई भी एप्लीकेशन अपने आसपास देखो, हर एप्लीकेशन में एक कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर ही होगी। जैसे अगर तुम स्टॉक मार्केट की तुम एक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप बनाओगे ना, तो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल होता है मैचिंग एल्गोरिदम, जो ऑर्डर्स की बाय सेलिंग मैच करता है। तुम एक बुकिंग एप्लीकेशन बनाओगे तो कंकरेंसी इज द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। अगर तुम मतलब लेट्स से अगर कोई तुम लेट्स से लीड कोड जैसा एप्लीकेशन बना रहे हो, तो कंटेनराइजेशन इज द कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व कि तुम कैसे कंटेनर में अपनी प्रॉब्लम को रन कर सकते हो। तो इस तरीके से हर प्रोजेक्ट में ट्राई टू सॉल्व अ गुड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ताकि तुम रिज्यूमे पे भी लिखो ना तो बंदे को पढ़ के लगे हाँ यार मतलब ये बंदा कहीं हाँ मतलब इम्पैक्ट है उस चीज का, मतलब बंदे ने प्रोजेक्ट बनाने का एक रीजन था, कुछ सीखना चाहता था, कुछ देखना चाह रहा था। वरना मतलब तुम खाली कॉपी पेस्ट करके मतलब क्रड बनाए जा रहे हो, उससे ज्यादा कोई फायदा होता नहीं है। तो आई बिलीव एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये तुम्हें पढ़ने चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहिए। मैं अभी भी मतलब ऐसे एसडीज को मिलता हूँ जो मतलब प्रोसेस कैसे चल रहा है बिहाइंड द सीन्स वो नहीं समझ पाते हैं, उनको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाली चीज समझ में नहीं आती है एंड दे वांट टू टेक अ जॉब स्विच। अगर भाई जॉब स्विच नहीं होगा अगर तुम इतना फंडामेंटल चीजों को नहीं पहचान रहे होंगे, तो उन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। मैं तो करता था, मतलब दिस वर्क फॉर मी। मैं वो भी चीज बता रहा हूँ जो मेरे लिए और मेरे गुड फ्रेंड्स के लिए सारी वर्क करी है। तो दिस यूज्ड टू वर्क लॉट फॉर मी। मतलब इंटरव्यूज में मेरे को ये नहीं रहता था कि यार कंप्यूटर नेटवर्क तो मेरा रिवाइज ही नहीं, उसको क्वेश्चन आ गए तो दिक्कत हुई। मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कोई पूछेगा मैं बता दूंगा। अब मैं वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे मुझे कुछ नहीं आता था उसका, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेवल पे आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। आई वुड से कि मतलब हैकाथॉन्स वगैरह में जाने का तुम्हें इंटरेस्ट लगता है, यू शुड गो। मतलब एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। यू ट्राई टू इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। 4 साल बहुत होता है, मतलब it's enough to explore a lot of things and make a niche in something. Totally agree. Like if I would be in first year, so जैसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओप्स, डीबीएमएस के सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते हैं, ये धीरे-धीरे सेकंड थर्ड ईयर में आते हैं अलग-अलग सेम में। तो सेकंड ईयर में जब हम लोग इंटर्नशिप ग्रैब करते हैं, सो एज अ फर्स्ट ईयर हाउ कैन आई मैनेज माय शेड्यूल कि मुझे ये भी पढ़ना है, डीएसए भी करनी है, डीएसए वर्सेस डेव में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हाउ टू मैनेज द शेड्यूल? मतलब सब्जेक्ट के आने का वेट कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से जब तक मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस तो मतलब अगर तुम थोड़ा भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे तो डीबीएमएस से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंटर्नशिप के लिए उतना मतलब सेकंड ईयर के बच्चे से देखो यार, मतलब इतना बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सामने, एक्सपेक्टेशन भी कम होती है। और प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेक्टेशन भी 99% बच्चों के वो सेटिस्फाई करने का लेवल नहीं होता। द सेकंड ईयर का बच्चा, उसने आधे केसेस में कभी कोई डीबी इंटीग्रेट ही नहीं किया हुआ, तो डीबी में कोई क्वेरी नहीं करी होगी, तो वो बेसिक डेटाबेस भी नहीं आता होगा। तो आई वुड से मतलब आई वेटेड फॉर माय करिकुलम टू इंट्रोड्यूस मी टू ऑपरेटिंग सिस्टम, टू कंप्यूटर नेटवर्क डिटेल। बट डेव लेवल पे बेसिक तुम स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें काफी सारी चीजें करते करते समझ में आ जाएंगी कि मतलब अगर तुम लेट्स से एक जावा का सर्वर सेटअप कर रहे हो, एक तुमने डेटाबेस का सर्वर सेटअप किया, दो चीजें अलग अलग पोर्ट पे चल रही हैं, वो तुम्हें खुद ही स्पार्क करेगी क्वेश्चन कि ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। अगर तुम वो ट्राई करो तो तुम्हें एक बार को लगेगा भाई देख लेते हैं कि मतलब ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। और आजकल जीपीटी है, 2 मिनट में क्वेश्चन डालो वो रीजनिंग दे देता है। सो रीजनिंग लेवल पे इंट्रोडक्शन तुम्हारा तब हो जाएगा एंड देन यू कैन वेट फॉर कॉलेज, मतलब कि सेकंड थर्ड ईयर तक आके तुम्हें डिटेल में चीजें आती है। तब एक्सपेक्टेशन भी होती है, जो थर्ड ईयर वाले इंटर्न का इंटरव्यू हो रहा होता है उसकी एक्सपेक्टेशन स्लाइटली हायर होती है रादर देन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला। फर्स्ट ईयर का तो वो मान के चलते हैं कि मतलब ये बस किसी तरह कुछ एग्जीक्यूशन कर दे, वो भी बड़ी बात है इसके लिए, वो खुद भी मौका ही दे रहे हैं तुम्हें बस। And like DSA is still the primary filter in interviews, जबकि actual work projects में होता है। ये एक का क्वेश्चन था हमने जब पोल करवाया था। So why only DSA is asked in most of the rounds? यार मतलब DSA is asked in most of the round because so like for SD1, so मतलब अगर तुम कंपनी में कभी आओगे तो most of the companies, मतलब I cannot guarantee for every company but most of the companies have something called as a career ladder.
Okay. करियर लैडर क्या होता है कि तुम करियर में किस पॉइंट पे हो और तुम्हें उस पॉइंट पे मीट्स एक्सपेक्टेशन रिव्यू लाने के लिए क्या करना होता है। मीट्स एक्सपेक्टेशन रिव्यू मतलब कि तुम्हारे लेवल पे जो तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम उतना करते हो। तो जो SD1 लेवल होता है उसका मीट्स एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया होता है एग्जीक्यूशन। 90% केसेस में तुम्हें लॉजिक थोड़ा बहुत मतलब तुम्हें बिजनेस लॉजिक पता होना चाहिए और तुम्हें उस बिजनेस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यही एक्सपेक्टेशन होती है SD1 से मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर मीट्स एक्सपेक्टेशन। अब इस चीज को मैं कैसे जज करूंगा कि तुम किसी लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर पाते हो नहीं कर पाते। इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे इज DSA। तो एक वो वाली चीज क्राइटेरिया हो जाता है। दूसरा DSA इंटरव्यूज मतलब पीपल डोंट अंडरस्टैंड द जिस्ट बिहाइंड इट बट आई बिलीव DSA इंटरव्यूज गिव्स यू अ गुड क्लैरिटी फॉर डिबगिंग स्किल्स। बंदा डिबग कितना बढ़िया कर पाता है वो चीज DSA से पता लग जाती है कि मतलब तुमने खुद मतलब कोड गलत कोई भी लिख सकता है राइट बट हाउ फास्ट यू आर एबल टू डिबग। हाफ टाइम मेरा आधा टाइम पूरे दिन का डिबग करते हुए जाता है कि मतलब क्या क्यों नहीं चल रहा है कुछ कोड लिखने में उतना टाइम नहीं जाता। तो दैट इज आल्सो वन थिंग दैट कंपनीज डू आस्क फॉर। थर्ड थिंग इज कंपनीज डू वांट टू मेक श्योर कि यार तुम्हें कोड लिखना आता है इंटरनल। जैसे गूगल में तुम आओगे या लेट्स से तुम मेटा में आओगे और लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें Node.js में पूरा बैकएंड आता है तो Node.js की नॉलेज मोस्टली वेस्ट है। गूगल में यूज नहीं होता मेटा में यूज नहीं होता। तो उनका अपना टेक स्टैक है तो दे वांट समबडी जो प्रोग्रामिंग समझता है जो लिखा हुआ कोड पढ़ना जानता है। दे अंडरस्टैंड द रिटन कोड इजीली एंड दे आर एबल टू ऑनबोर्ड टू थिंग्स फास्टर। ओके हाँ तो इसलिए मतलब DSA बिकम्स अ गुड मेट्रिक। ऑल्दो आजकल काफी सारी कंपनीज अपना हायरिंग क्राइटेरिया चेंज भी कर रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाई टू रिमोट जॉब्स तो रिमोट जॉब्स में दे गिव यू सम टेक होम असाइनमेंट्स दे गिव यू सम काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब प्रॉब्लम विल बी सिंपल बट थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्ट वे में तुम्हें प्रॉब्लम देंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉइन चेंज प्रॉब्लम होती है। तो रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड एक स्टार्टअप के लिए इंटरव्यू दे रहा था। उन्होंने उस कॉइन चेंज प्रॉब्लम को एक ऐसे एलिवेटर मशीन में इंटीग्रेट करा कि मतलब लेट्स से यू हैव टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर फॉर एन एलिवेटर मशीन और उसका पूरा उन्होंने आर्किटेक्चर उसको कुछ कुछ बना के दिया एंड देन इवेंचुअली द प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड टू सॉल्व वाज कॉइन चेंज क्योंकि नॉट द एलिवेटर मशीन द वेंडिंग मशीन में कॉइन चेंज इज अ रेलेवेंट प्रॉब्लम कि तुम्हें रेलेवेंट नंबर ऑफ कॉइन चेंज निकाल के देना है। तो ऐसे टाइप की कंपनीज थोड़ा सा इनोवेशन अपने एंड पे कर लेती है। And again, मतलब it's mostly like कि unless the pattern changes end to end, you have to follow the pattern. तो DSA तो you have to do, but ऐसा नहीं है कि कंपनीज डेव नहीं पूछती हैं। मतलब मैं तो इंटरव्यूज देता था काफी कंपनीज थी जो डेव पूछती थी। जैसे मैंने स्प्रिंकलर का इंटरव्यू दिया था तब उस टाइम ऑफलाइन इंटरव्यू होते थे अब तो सब ऑनलाइन होता है। मैं ऑफलाइन स्प्रिंकलर के ऑफिस गया था उन्होंने बिठा के मतलब मेरे को डेव एक राउंड पूरा एंड टू एंड डेव में तोड़ा था कि मतलब जावास्क्रिप्ट में ये कैसे होता है फ्रंट एंड पे ये चीज कैसे होगी फॉर ये वो। मैंने ग्रोफर्स का इंटरव्यू दिया था अपने टाइम पे तो नाउ इट इज ब्लिंकिट एंड टू मतलब एक पूरा राउंड एंड टू एंड डेव था। देयर इज अ कंपनी इन सिंगापुर शॉपी उसका मैंने फ्रेशर टाइम पे इंटरव्यू दिया था। तो देयर आर रेलेवेंट कंपनीज जो डेव पूछती हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब तुम हर चीज को गूगल और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के स्केल पे जज नहीं कर सकते। उनको स्टैंडर्डाइजेशन हाई रखना होता है। वो इंटरव्यू जब बंदा लेने आ रहा है तो वो देख मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते। उनका कोई इंटरव्यूअर कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है उनका कोई और इंटरव्यूअर कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है। दे नीड अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड बट उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते और लोग नहीं पूछते हैं। बट हाँ मतलब DSA इज इंपॉर्टेंट। मतलब आई वुड लव कि हमेशा DSA टेस्टिंग एक राउंड तो होना चाहिए। Right. Well, hiring rounds will be changed after 5 years. जैसे AI इतना इवॉल्व हो रहा है ट्रेंड में भी है तो ऑनलाइन असेसमेंट का लेवल कितना हार्ड हो गया है। इवन सेकंड ईयर का स्टूडेंट सोचने लग जाता है कि इसमें DSA का टॉपिक कौन सा यूज हुआ है कभी कभार क्योंकि उन्हें हैबिट पड़ जाती है वो टैग लीड कोड पे प्रैक्टिस करते टाइम कि तो ग्राफ का क्वेश्चन है मैं कर लूंगा ये मुझे पैटर्न्स आते हैं। सो हमें कैसे प्रैक्टिस अपनी रखनी चाहिए? मतलब आई बिलीव मतलब ऑनलाइन कोडिंग मतलब मैंने कई बार इस बारे में कोई स्टूडेंट पूछता है तो मैं बता देता हूँ कि मतलब बिगेस्ट हर्डल देखो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट ही होता है वहीं पे 90% लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो आई बिलीव थोड़ा पैटर्न रिकॉग्निशन की आदत होनी चाहिए। इट्स मोर लाइक मैथ की मतलब यू हैव पैटर्न रिकॉग्निशन वाली चीज की जैसे इंटीग्रेशन में यू अंडरस्टैंड द पैटर्न राइट कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देख के पता लग रहा है कि इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हो जाएगा। तो मैथ्स में जैसे हम लोग बचपन में करते थे आई बिलीव सेम थिंग ऐसा होता है और देयर आर इनफ पैटर्न्स जो तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है कि यू हैव टू फाइंड मतलब काइंड ऑफ लाइक कि kth लार्जेस्ट टाइप का एलिमेंट निकालना है बट तुम्हारे पास 10⁶ तक की लिमिट आ रही है कंस्ट्रेंट्स की तो तुम मतलब n तक में ही कर पाओगे n log n करने में भी शायद टाइट हो जाएगा। तो दैट शुड गिव यू अ सेंस कि यार क्विक सेलेक्ट लगाना है फॉर एग्जांपल कि भाई क्विक सेलेक्ट से यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो
यू शुड ऑब्जर्व द कंस्ट्रेंट्स की कंस्ट्रेंट किस टाइप के एल्गोरिदम्स को डायरेक्ट एलिमिनेट कर रही है. मतलब ट्राई टू हैव अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि भाई पक्का ये वाली चीज तो नहीं लग रही है, ये वाली चीज भी नहीं लग रही है, क्योंकि कंस्ट्रेंट से आधी चीजें पता लग जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू सी कि भाई थोड़ा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम में और ब्रूट फोर्स लगाना है, ब्रूट फोर्स लगाते ही दिख रहा है कि मतलब थोड़ी सी और कंस्ट्रेंट्स काफी लो हैं, मतलब एन Right. की वैल्यू बहुत ज्यादा लो है और ब्रूट फोर्स से तुम डीपी ऑप्टिमाइजेशन सोच रहे हो तो मे बी डीपी विद बिटमास्क लग सकता है कि अगर तुम उसको बिटमास्क में कन्वर्ट कर पा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिटमास्किंग डीपी विद बिटमास्किंग प्रॉब्लम हैज अ वेरी लो वैल्यू ऑन द साइड ऑफ एन. ठीक है, जो एन मतलब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पे एक एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर होता है. तो मतलब ऐसे तुम ऑब्जर्वेशन रखो कि किस टाइप की प्रॉब्लम, जैसे अब अगर कोई प्रॉब्लम है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम सॉल्व करने की, इट्स अ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम 99% केसेस. तो ट्राई टू डू पैटर्न रिकॉग्निशन की किस तरीके के पैटर्न की प्रॉब्लम आ रही है. और तुम एंड अगेन दैट विल कम जब तुमने काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हो. ठीक है, शुरू में तुम टैग देख के सॉल्व करो, बाद में ट्राई करो टैग देख के बिना सॉल्व करो. इट्स Alright. मोस्टली अराउंड प्रैक्टिस, मतलब शॉर्टकट तो नहीं है कोई. Yes, got it. Even you might be relating to it. जैसे आपने गूगल का इंटरव्यू दिया होगा एंड गूगल के इंटरव्यू में जनरली क्या होता है, वी राइट कोड ऑन गूगल डॉक्स. वो लोग yeah. कोड को रन नहीं करवाते हैं एंड जनरली वो टेस्ट केसेस देखते हैं, हम लोग लिखते हैं. तो कभी कभार क्या होता है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, बट द इंटर्न्स जो सेकंड राउंड तक जा रहे हैं, कभी कभार उनके अंदर इतना फियर होता है कि वो हेजिटेट करने लग जाते हैं. उनके अंदर फियर होता है कि हम इंटरव्यू को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाएंगे इंटरव्यूअर के सामने. तो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. मतलब बहुत बार वो इंसान प्रिपेयर्ड होता है बट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है कि हु दैट पर्सन इज, हाउ ही इज राइटिंग द कोड. मॉक इंटरव्यू वगैरह देने चाहिए. आई एम नॉट श्योर कि मतलब व्हाट नाउडेज स्टूडेंट्स आर डूइंग. मतलब हम लोग मतलब ऐसे आपस में फ्रेंड एज अ फ्रेंड मॉक इंटरव्यूज वगैरह सेटअप कर लेते हैं. नाउडेज देयर आर लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूइंग सर्विसेज आल्सो, इफ आई करेक्टली रिमेंबर. बट मतलब आई बिलीव मॉक इट्स लाइक मॉक टेस्ट देना चाहिए फॉर योर राउंड्स. और मतलब आई बिलीव कि गूगल डॉक्स पे जैसे कोड लिखने वाला सिनेरियो है, गूगल डज दिस थिंग एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज आल्सो डज दिस थिंग, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे उबर के राउंड हुए थे, मेरे से क्वाड-ट्री का क्वेश्चन पूछा था. मैंने जो कोड लिखा था वो मुझे पता था कि अगर रन होगा तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सूडो कोड लेवल पे ही लिखा था पूरा. क्योंकि अब वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने बंदे ने मुझसे क्वाड-ट्री पूछा और ऐसे क्वाड-ट्री का इम्प्लीमेंटेशन मुझे ऐसे रटा हुआ नहीं था. तो मैंने लिखना शुरू किया कि भाई ऐसे 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 क्वाड-ट्री चलती है. तो वो भी चेक करना चाहते हैं कि मतलब नाउ थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट, कि मतलब ऐसे कोड तो मतलब इस चीज का कोड तो मिल जाएगा तुम्हें इंटरनेट से, बट तुम क्या लॉजिक को कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे. तो इसलिए वो गूगल डॉक्स पे लिखवाते हैं. आई बिलीव कि तुम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के जाओ इंटरव्यू में कि यार मतलब आई हैव टू डेफिनेटली टेल द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, आई हैव टू डेफिनेटली टेल द एज केसेस. थोड़ा सा स्ट्रक्चर खुद से बना के जाओ कि यार मतलब मैं कम से कम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो सही बता, क्योंकि ओके सो द थिंग इज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है फॉर एवरी राउंड. देयर आर मेट्रिक कि बंदे ने मतलब ये चीजें करी थी नहीं करी थी. उसमें से कुछ चीजें शॉर्ट होती है, जैसे कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. तो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस खराब मत करो. इट्स लाइक दैट. ऐसे छोटी छोटी चीजों का तुम ध्यान रखोगे तो इट शुड क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर यू कि यार इतना करने में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सही आना चाहिए. आजकल कंपनी थोड़ा पिकी हो गई है कि मतलब 100/100 सही होता है तभी हायर करती हैं, वरना डाउन लेवल कर देती हैं, कुछ कर देती हैं. तो बट इट्स फॉर एवरीबॉडी ना, मतलब सेम सबके लिए सेम क्राइटेरिया. तो आई बिलीव थोड़ा मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, थोड़ा स्ट्रक्चर बना के लेके जाओ कि यार मतलब आई हैव टू सॉल्व फास्ट. मतलब एक चीज हमेशा ये भी याद रखना कि अगर तुम्हें कंपनी का पैटर्न पता है कि वो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन पूछती हैं और तुम 40 मिनट से एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हो, तो भी तो तुम रिजेक्ट ही हो जाओगे. तो बेटर है कि डू टाइम बॉक्सिंग, कि मतलब शुरू के 10 मिनट में मुझे नहीं आया तो भाई मैं ब्रूट फोर्स से ही शुरू कर दूंगा बताना. मैं ब्रूट फोर्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा. मे बी इंटरव्यूअर थोड़ा हिंट दे दे. इंटरव्यूअर्स डू गिव हिंट्स, उनको मैंडेटरी होता है. तो दैट शुड ड्राइव योर राउंड. So interview also see sometimes ना if they are giving hints कि वो catch कर पा रहा है ये नहीं, क्योंकि एक दो तीन approaches होते हैं तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं. हाँ, दे डू लुक फॉर कि मतलब क्योंकि यार काम भी तुम करोगे तो तुम्हें तो सब कुछ तो आता नहीं होगा. तुम मान लो टीम अभी ज्वाइन कर लो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता ना टीम के बारे में. टीम का 6 साल से पुराना पड़ा हुआ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कुछ तुम्हें गाइड करेगा, तो तुम उस चीज को पिक करोगे या नहीं करोगे. इस चीज का जजमेंट इससे लिया जाता है क्या तुम हिंट्स कैच कर रहे हो नहीं कर रहे. तो हिंट कैचिंग विल बी इंपॉर्टेंट, बट हिंट तो तभी आएगा ना जब तुम कुछ तो शुरू करोगे. तुम बैठे हुए हो और मतलब लगा रहे हो कि भाई कुछ बता नहीं रहे हो, तो दैट विल नॉट हेल्प. राइट. एंड वो फीडबैक्स देन सेकंड राउंड के लिए जाता है. कभी कभार हमें कॉल आ जाती है कि हमारा सेकंड राउंड शेड्यूल हो गया बहुत जल्दी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. आई गेस दिस वुड बी
हमारा हाँ पास मतलब काफी सारे मतलब इट डिपेंड्स। कुछ कंपनीज होती हैं जो क्यूमुलेटिव राउंड फीडबैक लेती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू गूगल, तो गूगल में क्या होता है, अगर तुमने अपना एलिमिनेटरी राउंड पास कर लिया तो फुल यस इंटरव्यू साइकिल के पहले सारे राउंड हो जाते हैं, यस उसके बाद पूरा फीडबैक आगे जाता है। ऑलराइट लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरव्यूइंग फॉर रिपलिंग, रिपलिंग में ऐसा नहीं होगा। रिपलिंग में यू गिव द फर्स्ट राउंड, अगर फर्स्ट राउंड क्लियर होगा वो तभी अगला राउंड लेंगे, ऑलराइट दूसरा क्लियर होगा तभी तीसरा लेंगे। सो तुम एचआर से ये चीज क्लैरिटी ले सकते हो कि व्हाट इज देयर पैटर्न। अगर ओके पैटर्न ऐसा है कि क्यूमुलेटिव राउंड असेसमेंट हो रहा है, तो एक यस आधे राउंड में कुछ तुमने ऊपर नीचे कर लिया तो भी, चल क्योंकि जब जाए वो पैकेट डिस्कशन होगा मे बी कोई तुम्हारे लिए वाउच कर देगा। बट जो यस एलिमिनेटरी वाले राउंड होते हैं वो मतलब अगर तुमने खराब कर दिया तो मतलब यू आर आउट। ओके एंड फ्यू वीक्स अगो आई वाज अप्लाइंग फॉर रूब्रिक एंड उसमें क्या होता है कि जो करियर पोर्टल पे कोड फोर्सेस एंड कोडशेफ की रेटिंग्स पूछते हैं। सो कितनी वेटेज है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, क्योंकि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल या लिंक्डइन के हम करियर पोर्टल पर जाके अप्लाई भी करते हैं सामने से, तो वहां पर ये लोग कोड फोर्सेस एंड कोडशेफ की रेटिंग्स नहीं पूछते जनरली, बट सम ऑफ So द rubric, let me check what rubric does. यस That will clarify. Defense rubric.com. Okay. तो ठीक है, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, तो मे बी rubric asks for this, they are into data security etc. But maybe rubrics ask for it, but majority of the companies don't. मतलब Google, Meta, Microsoft, Uber कोई नहीं पूछता। I am not, मैंने कभी rubric का इंटरव्यू नहीं दिया है। I am not sure what is the scale of difficulty. I don't know the scale of difficulty, but if some company is asking is, ऐसा नहीं है कि सब पूछेंगे। मतलब ऐसे तो कोई कंपनी आके तुमसे पूछेगी तुमने कोई रिसर्च पेपर लिखा नहीं लिखा, तो तुम अब बैठ के रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे। राइट राइट मतलब ठीक है, इफ मतलब आई बिलीव इफ आई वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द हायरिंग टीम एट रूब्रिक, मैं ये नहीं देखता कि मतलब बंदा कोड फोर्सेस पे इंडिया का टॉप 10 है या नहीं है। कोड फोर्सेस पे या कोड शेफ पे, इन पे अकाउंट होना ही, मतलब अकाउंट होना, उस पे थोड़ी अकाउंट एक्टिविटी होना ही आजकल बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी लोग बात मोस्टली उतना भी नहीं करते हैं कि करते भाई बंदे ने एटलीस्ट ट्राई करा है नहीं करा। मैं तो ये देखता और फिर बंदे के ओवरऑल प्रोफाइल को जज करता, क्योंकि Yes. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पता नहीं तुमने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कैसे खुद लिखा है कोड नहीं लिखा है, उसका जजमेंट तो रूब्रिक नहीं कर पाएगा। तो आई बिलीव दैट माइट बी अ क्राइटेरिया, बट आई डोंट डू थिंग्स जो एक्सेप्शन वाले केसेस पे चलते हैं कि भाई इस कंपनी के लिए अलग से करना पड़ता है, वो नहीं करता मैं, क्योंकि दैट डजंट एड अप टू द रिमेनिंग सेट ऑफ कंपनीज। मेरे बाकी सारे राउंड्स बेकार हो जाएंगे खाली एक के चक्कर में, तो आई डोंट डू दैट। Yeah, right. And internships are often the first door to big tech. So लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इंटर्नशिप्स तो कंप्लीट कर ली, बट पीपीओ कैसे मिलेगा, हम कैसे अपने मैनेजर की सेटिस्फैक्शन को मतलब पूरा करें, बट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस हम ऐसा फुलफिल करें उनका जिससे हमें पीपीओ मिल सके। मतलब मैंने देखो बिग टेक में इंटर्न नहीं करी थी क्योंकि मुझे नहीं ऑफर हुई, ठीक है। तो मतलब द आंसर दैट आई विल गिव माइट बी बायस्ड, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं कर, मतलब मेरे हिसाब से मतलब हम लोग तो उस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते थे कि बिग टेक में इंटर्न करने का ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। मैं उसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजनिंग बताता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करोगे या जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ज्वाइन करोगे, गूगल में आप डे वन से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको गूगल के टेक स्टैक का कुछ नहीं पता है आपको। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब गूगल में कोड लिखने का तरीका इज फार 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 डिफरेंट देन एनी अदर कंपनी। जबकि स्टार्टअप में यू गो डे जीरो पे तुम्हारी एक पीआर आउट होती है। yes. तो जो देयर इज सम, मतलब जो चर्न ऑफ कोड है वो स्टार्टअप में ज्यादा होता है, तो आई बिलीव लर्निंग वहाँ ज्यादा होती है। बिग टेक में क्या होता है, पहले हफ्ते तुम्हारी वो बूट कैंपिंग होगी, तुम एक हफ्ता सीखोगे कि गूगल में कोड कैसे लिखते हैं, लास्ट वीक तुम्हारी प्रेजेंटेशन होगी, तो 8 वीक का इंटर्न एफर्ट 6 हफ्ते का ही बचता है। yes. तो उस 6 हफ्ते में यू हैव टू डू थिंग्स, तो प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी भी अकॉर्डिंगली ही होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक इंटर्न के भी थोड़ा प्रेशर होता है कि 20 इंटर्न्स उसमें से 2-3 कोई पीपीओ मिलेगा। हाँ मतलब प्रेशर तो देखो होता ही है। एक्सेप्शन मतलब मेरे हिसाब से मतलब जो मैंने देखा है बिग टेक में ऐसा होता है कि सब इंटर्न्स को अलग प्रोजेक्ट एलोकेटेड होता है। yes, और अगेन इट्स ऑल अबाउट कि तुम अपने मैनेजर से पहली बात करके रखो, भाई ये प्रोजेक्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका सक्सेस मतलब, सो एवरी प्रोजेक्ट हैज समथिंग कॉल्ड एज कि मतलब इसको कंप्लीशन किस चीज पे क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया ऑफ कंप्लीशन है। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई फीचर लिखने के लिए दिया है या कोई लेट्स से कोई सर्विस माइग्रेट करने के लिए दी है, तो तुम्हारा पार्ट क्या है, तुम्हें क्या चीज तुम्हारे लिए सक्सेस मैट्रिक है, एंड देन किसको तुम कंप्लीशन क्राइटेरिया मानोगे। देन इंटर्न्स के साथ क्या होता है कि रेगुलर 1-on-1 करने होते हैं मैनेजर को। सो एवरी वीक यू आस्क कि मतलब लास्ट वीक मेरे लिए क्या बढ़िया रहा, ठीक है, लास्ट वीक व्हाट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि तुम 5वें हफ्ते में फीडबैक मांगोगे तो द शिप इज गॉन।
पे थोड़ा तो सा। यू गेट फीडबैक रेगुलरली, और बिग टेक में ये चीज बढ़िया होती है कि मैनेजर्स एंड ऑल आर वेरी सपोर्टिंग, दे गिव फीडबैक, क्योंकि वो मतलब उनको एक बाय द बुक थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, तो दे गिव गुड डिटेल्ड फीडबैक। और अगर तुम उस पर एक्टिवली काम करते हो एंड यू ड्राइव द प्रोजेक्ट टू कंप्लीशन, जितना मुझे पता है इंटर्न्स का बिग टेक में प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज द क्राइटेरिया ऑफ पीपीओ। यस। स्टार्टअप्स में इट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। स्टार्टअप्स में दे सी कि मतलब भाई तुम कितना काम कर सकते हो, मतलब जितना तुम काम कर सकते हो स्टार्टअप्स में कर देंगे। मतलब स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होगा कि अगर 20 के 20 बंदे बहुत ज्यादा काम करने वाले आए ना, देयर इज अ गुड चांस वो सबको ले लेंगे अगर उनके पास उतना पैसा होगा तो। बट देयर इज नॉट लाइक हेड काउंट। मतलब स्टार्टअप में वो देखते हैं कि मतलब कितना रिगर है और कितना चर्न है कि आप, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी, कोड वेलोसिटी, तुम कितना तेजी से काम निपटा पा रहे हो, दैट इज एफिशिएंसी कैसी है, स्टार्टअप में वो देखते हैं। बिग टेक में दे सी कि मतलब टीम कोलैबोरेशन कैसा है, डू यू आस्क गुड क्वेश्चंस और नॉट, or do you drive the project to completion or not, do you handle edge cases well or not, do you handle productionization or not। अगर तुमने मान लो मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया और उसके मेंटेनेंस फेज का एक हफ्ता रखा है, वेदर यू आर डूइंग द मेंटेनेंस प्रॉपर्ली और नॉट, वो सब क्राइटेरिया होता है। बट मतलब देखो प्रेशर तो सब पे ही होता है, मतलब जिनकी इंटर्न लगी है उनको पीपीओ का प्रेशर है, जिसकी इंटर्न भी नहीं लगी है उसको जॉब का प्रेशर है। फिर आगे तो मतलब वो यू हैव टू, यू कैनॉट विन ऑल द वॉर्स, मतलब कुछ तो हारोगे कुछ तो जीतोगे, ऐसा वाला होता है। As you crack 20 plus MNC offers, so that's a huge number. But student often wonders कि एक से ज्यादा offers के बीच कैसे choose करते हैं, क्या बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर एक ऑफर डिले हो जाए या रिजेक्ट हो जाए तो हमारा प्लान बी इज रेडी। हम कितनी बार लिंक्डइन पे देखते हैं कि एटलैसियन का ऑफर रिवोक हो गया है या फिर मार्केट सिनेरियो बैड चली गई है। मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ कि मतलब तुम्हें मल्टीपल इंटरव्यूज क्लियर रखने चाहिए। उसके दो तीन रीजन है। मेरे साथ भी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो गया था, कोविड था, तो मतलब आई हैड ऑफर्स फ्रॉम लिंक्डइन, स्प्रिंकलर, बोथ आर नोन टू पे वेरी गुड, बट दोनों के ही ऑफर डेफर हो गए थे क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम, मतलब आईपी में एग्जाम नहीं हुए थे क्योंकि इन ऑनलाइन इंफ्रा नहीं तैयार कर पाया था आईपी यूनिवर्सिटी। दैट इज ओके, मतलब आई डोंट हैव मच प्रॉब्लम विद दैट, बट उस वजह से ऑफर वो डिले करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मतलब यार, मतलब 2 के बाद भी तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, एंड कोविड वाज वन सच सिचुएशन। सो और अभी भी मतलब आई मेक श्योर कि यार मतलब कम से कम 2 ऑफर तो हो, बिकॉज मतलब कंपनीज डू रिवोक ऑफर्स, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस कैन गो अप एंड डाउन उसमें, मतलब दे डोंट वांट टू टारगेट यू बट दे हैव टू डू इट, इफ दे हैव टू डू इट दे विल डू इट। सो यू आल्सो नीड टू बी रेडी, आई बिलीव। एंड प्लस अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा एक इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन यू गेट कॉन्फिडेंस फॉर मोर इंटरव्यूज, तो मतलब बाकी इंटरव्यूज में ना मोमेंटम से क्लियर हो जाते हैं, आ जाता है। तो वो वाली चीज एक होनी चाहिए। यू शुड कीप ऑन गिविंग इंटरव्यूज जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। मतलब मैं मतलब प्लान हाँ, मतलब बैकअप शुड बी देयर, मतलब देयर इज नो ऑप्शन लाइक कि मतलब तुमने एक इंटरव्यू निकाल लिया और तुम बैठे हुए हो, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही तुम देते रहो, यू विल लर्न समथिंग, तो यू विल लर्न समथिंग। आई बिलीव एवरीबडी शुड गेट अ बैकअप ऑफर ऑलवेज, मतलब और मतलब ठीक है, तुम कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा उस कंपनी को मैं मना कैसे करूं, मतलब उस कंपनी ने तुम्हें तुम्हारा ऑफर रिवोक कर दिया तो भी तुम्हें, वो तो अगर तुम्हें तुम्हारे लिए कर पा रही है तो तुम्हें भी करने के लिए थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन से चीज याद आई, जैसे अभी बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है कि एआई रिप्लेस करेगा जॉब, एसडी की रोल सारी गायब हो जाएंगी क्या, एआई कर देगा या फिर एफिशिएंसी बढ़ाएगा ह्यूमंस की। मेरे हिसाब से तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई बिलीव एंट्री लेवल रोल्स में थोड़ा सा इशू होगा। जैसे मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह भी पढ़ रहा था जो सीनियर इंजीनियर्स के ओपिनियन है कि मतलब जैसे जो एंट्री लेवल, जैसे मैंने कहा ना करियर लैडर होता है, करियर लैडर में SD1 की एक्सपेक्टेशन एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, काफी सारा पार्ट अब एआई कर देता है। सो व्हाट आई बिलीव इज कि मतलब अभी बीच में क्या हो गया था कि मतलब सब लोग सुई का काम पढ़ते थे, मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे क्योंकि सुई में जॉब ज्यादा थी। अब वो रिलेटिव नंबर ऑफ जॉब्स हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सुई का काम खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी आल्सो यूज अ लॉट ऑफ एआई टूल्स, बट दे माइट नॉट बी मेकिंग अ वेरी परफॉर्मेंट कोड, दे माइट नॉट बी मेकिंग अ वेरी एफिशिएंट कोड, क्लीन कोड, आर्किटेक्चरली करेक्ट कोड। मतलब सिंपल फंक्शन लिखने के लिए भी डू यूज, मतलब कुल मिलाकर काफी सर्चिंग एफर्ट बच जाता है। कोड रिव्यू का एफर्ट, मतलब पहले कोड रिव्यू करने में दिन का 1 घंटा जाता था, अगर पूरी टीम के 5 बंदों ने 5 PRs रेस करी हुई हैं तो 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, टेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, काफी सारा कोड रिव्यू एफर्ट बच जाता है। तो आई डू बिलीव कि मतलब देयर माइट बी सम कटिंग डाउन हेयर एंड देयर, कि भाई कोई स्पेसिफिक रेलिवेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम नहीं था, वो चीज आउट हो जाएगी ऐसे, बट ऐसा नहीं है कि पूरी फील्ड आउट हो जाएगी। आई बिलीव कि एंट्री लेवल बैरियर, मतलब जो पहले था वो चेंज हो जाएगा, मे बी
people start looking for slightly a bit more architecturally sound software engineers, maybe, I'm not sure. तभी काफी सारे लोग इंटरव्यूज में अब एआई इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, काफी कंपनीज एआई वगैरह इंट्रोड्यूस कर चुकी है, लाइक रिपलिंग हैज इंट्रोड्यूस्ड वन कंपनी दैट आई नो. तो आई बिलीव दैट सिनेरियो तो विल चेंज, क्योंकि यू डोंट हैव टू राइट वेरी मंडेन कोड नाउडेज, वो एआई लिख देता है. तो मे बी सिनेरियो, मतलब आई बिलीव इट माइट चेंज अ बिट, इट्स अप टू यू टू ऑब्जर्व. एक रिसेंटली कल ही न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो H1B वीजा कॉस्ट विल शूट अप. कंपनीज जो पहले 3 to 4 लाख एक एम्प्लॉय पे करती थी, वो अब 88 लाख पर एम्प्लॉय हो गया एज कम्पेयर टू 3 to 4 लाख कर लिए. मतलब स्टूडेंट्स भी जो जाते थे मास्टर्स करने और AIML फील्ड, हम रिसर्च पेपर लिखेंगे, वहीं जॉब करेंगे 50 लाख का लोन लेके. तो आपको लगता है कि इंडियन टैलेंट के लिए अब ग्लोबल हायरिंग और टफ होगी, या इंडिया बेस्ड ऑफिसेज प्लस रिमोट अपॉर्चुनिटीज का बूम होगा? मतलब आई तो बिलीव कि मतलब इंडिया में भी इनफ हायरिंग होती है यार. मतलब आई डोंट नो कोई ऐसी बढ़िया कंपनी हो जिसका इंडिया में ऑफिस नहीं है. आई बिलीव इंडियन ऑफिसेज हैव वेरी ग्रेट टैलेंट, और मतलब इंडिया में देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग अप. अगेन एज आई सेड, मैं कॉर्नर केसेस के हिसाब से चीजें इवेलुएट नहीं करता कि मतलब ये एक स्पेसिफिक जगह पे ऐसा हो रहा है बट बाकी हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक यूएस का कॉर्नर केस लेके मैं पूरा करियर उस पर दाव पे तो नहीं लगाऊंगा. तो आई बिलीव देयर विल बी चेंज, मतलब जो, एंड अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स. जो चीज कंट्रोल में ही नहीं है, जिस चीज पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते. तो बेटर ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मतलब इंटरव्यूज, बच्चों को उस पर फोकस करना चाहिए. एंड इंडिया में देर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज, आई टोटली बिलीव. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फिगर आउट करते हैं कि लेट्स से शुड वी गो आउट और नॉट. मतलब मैं उनको पहले बोल देता हूँ, मतलब अनलेस तुम्हें इंडिया में तुम्हारा कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है, तुम बाहर मत जाओ. आई केम टू लंदन, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को आना ही था और मैं बैठा ही हुआ था कि मतलब लंदन आना ही है तो वो है. मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी आई लगी कि एक्सप्लोर कर सकते हैं. मेटा के बहुत सारी जगह ऑफिसेज हैं, कहीं और भी जाना होगा, मेटा माइट बी एबल टू हेल्प मी रिलोकेट एंड एल्सवेयर आल्सो. तो आई एक्सप्लोर्ड एंड आई केम. बट ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो मतलब मैं लंदन के पीछे ही लगा रहा था. तो आई बिलीव द ग्रेटर इकोनॉमिक कंडीशन माइट नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट्स को अपना पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए. एंड मतलब जॉब उसकी जाएगी जिसके पास जॉब है. पहले तो ये क्राइटेरिया ना, जिस पहले तुम्हें पहली जॉब लेने पे फोकस करना चाहिए. इंटरनेशनल रिलोकेशन इज ऑलरेडी थोड़ा सा टफ आजकल. तो मतलब ट्राई की पहले इंडिया में यू डू सॉर्ट थिंग्स. और बस मैंने ये देखा है कि इंटरनेशनल रिलोकेशन में दे हैव अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया, वीजा क्राइटेरियाज, इंटरव्यूज थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. तो मतलब ट्राई टू मेक श्योर कि मतलब एटलीस्ट इंडियन अपॉर्चुनिटीज तो आप ग्रैब कर ही रहे हो. उसके बाद देन यू लुक फॉर आउटसाइड इंडिया. Yes. Let's do a rapid fire. Hardest interview, Google versus Meta. Google. अच्छा, Google. Okay. Any favorite programming language? C++, Java or Python? JavaScript. JavaScript. Okay. And DSA versus development, which one do you enjoy more? Now in 2025 dev. Okay. याद हो गए हैं काफी सारे एल्गोरिथम, तो अब बोर लगता है थोड़ा. Okay. Coffee or tea while coding? Coffee. Coffee. Okay. So if you could go back to student life and redo one thing, what would it would be? मतलब student life में जाना हो. I would say if I would do something better, I would have tried, let's say, something around apart from full stack dev also. मतलब मैंने full stack में बहुत time spend करा था. Maybe I could have spent more time in something else also. Explore और करा होता, क्योंकि आजकल मुझे वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है. तो I would have explored some other niche also, I believe. Right. So before we close, any message for final years batchmates जो 3 golden tips placement के लिए, क्योंकि placement season बहुत peak पर है, जो उन्हें avoid करना चाहिए, prepare करना. I would say one thing: try to crack your first interview. The momentum will follow, and you will be able to crack more. Second is don't be hesitant in applying. Apply. Like if you have to apply to 1,000 companies, apply. Don't cry after applying to 5 companies की reply नहीं आ रहा. Yeah. Third thing, be ready for interview any day. मतलब if you get a call for, let's say, Microsoft tomorrow, you should be in a state ki seize the opportunity. you seize the opportunity. You should not be like ki
अरे मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं मतलब हाँ. 6 महीने बाद दूंगा या 3 महीने बाद दूंगा. दैट शुड नॉट बी द केस. One bonus tip I would add कि try to be a better engineer. Don't just be कि lead coder. Don't be just a lead coder. Try to be a better software engineer. ओके, स्टार्टअप वर्सेस बिग टेक, मतलब लर्निंग सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? अगर इनिशियली स्टार्टअप में भी चलेगा तो क्या दुनिया एंड हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. Like if you are doing internships and all, I believe startups are definitely a way to go for. And I believe at some point of time you should also try and explore things in big tech. I love things here, and I have been into startup ecosystem during my internship days. So, but if you are starting, I believe startups are good. गुड. एंड कुछ लोग जाते हैं कि मास्टर्स की तरफ जाते हैं कुछ लोग, तो क्या मास्टर्स करके हम एक्सपीरियंस गेन करें तभी हम एम्प्लॉयड होंगे, या फिर आफ्टर बीटेक भी हम एम्प्लॉयड हो सकते हैं? मतलब मेरे मोस्टली फ्रेंड्स जो हैं वो नॉन मास्टर्स वाले हैं. आई एम ओके. नॉट इन फेवर. मतलब मेरे साथ Masters. मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, और मैं खुद भी पढ़ाई कर पाऊंगा. एग्जाम मतलब पढ़ाई कर सकता हूँ, एग्जाम नहीं होंगे मुझसे. यस, हमने एग्जाम 4 ईयर इतने दे दिए होते हैं कि हाँ, एमटेक मतलब मेरा तो आई डोंट अग्री. और मैं जितने भी लोग जो भी मेरे मेंटोर भी हैं जिनको मतलब आई लुक फॉरवर्ड कि यार मतलब दिस इज समथिंग दैट दे हैव डन वेरी वेल, एज फार एज आई करेक्टली रिमेम्बर कोई भी मास्टर्स वाला नहीं है. तो आई ओके. डोंट अग्री विद मास्टर्स वाला कंसेप्ट. एंड एनी टिप्स फॉर द जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके हाई सीजीपीए होते हैं, वो ऐसा क्या मिस कर रहे होते हैं कि वो 4th ईयर तक उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होता है? कभी कभार सेल्फ डाउट्स इतने आ जाते हैं रिजेक्शन फेस करके कि एक रिजेक्शन करने के बाद अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं. यार क्या डेली डेली हम वही अप्लाई किए जा रहे हैं लिंक्डइन पे. मतलब हाई सीजीपीए, देखो हाई सीजीपीए लाने के लिए तुम्हें कॉलेज में टाइम बहुत स्पेंड करना होता है. आई यस. बिलीव कॉलेज वाली चीज़ों पे टाइम स्पेंड करना होता है. आई वॉज समबडी जो मतलब थोड़ा वन नाइट फाइट ज़्यादा करता था. ओके. एंड मतलब मैं मतलब आई हैड फ्रेंड्स जो मतलब कॉलेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे और मैं उनसे थोड़ा बहुत पढ़ लेता था. तो इफ़ यू परफॉर्म अ लॉट इन कॉलेज तो देखो टाइम थोड़ा चला जाएगा तुम्हारा. आई राइट. बिलीव यू शुड ट्राई टू फाइंड अ गुड बैलेंस कि यार यस. मतलब टॉपर होने के लिए भी कोई मतलब अच्छा है भाई, कोई टॉपर है तो बढ़िया ही है, बट मतलब यू शुड ट्राई टू फाइंड द राइट बैलेंस कि मतलब यस. इफ यू आर समबडी जो 7-8 सीजीपीए ला रहा है एंड कोडिंग में भी तोड़ू फोड़ू है, तो लॉन्गर टर्म में तो यही ज़्यादा बेटर रहता है. मुझे मुझे ऐसा लगता है, रादर देन कि तुम मतलब 9.8 ही सीधा यूनिवर्सिटी टॉपर ही हो और हर सेमेस्टर में तुम यूनिवर्सिटी टॉप करते हो, लेकिन मतलब एक्चुअल इंजीनियरिंग वर्क तुम्हें नहीं आता है. तो आई बिलीव गुड बैलेंस होना चाहिए. और सेल्फ डाउट तो फिर होगा ही, क्योंकि अगर एक्चुअल जो चीज़ें इंटरव्यूज में पूछी जा रही हैं, जो एंट्री बैरियर है, तुमने उसके ऊपर काम नहीं किया है, लेकिन मतलब साइन वेव कॉस वेव पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ी है, तो वो तो नहीं पूछता है ना कोई. तो राइट. दोनों को बैलेंस करना होता है. आई बिलीव 7 सीजीपीए ले आओ एंड गेट मूविंग. So whom you will prefer more, the 9 CGPA students or the CGPA with 7 और उसका achievement strong है, I experience won't strong है? care, I won't care about CGPA. मैं अपने मतलब आई बिलीव मेरी कुछ 8 पॉइंट समथिंग है. आई हैव टू चेक द रिज्यूमे अगेन, बट मैं अपने रिज्यूमे के बॉटम राइट में अपना कॉलेज और सीजीपीए लिखता हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट इज द लीस्ट इम्पैक्टफुल थिंग इन माई रिज्यूमे. सो आई बिलीव योर सीजीपीए शुड बी द लीस्ट इम्पैक्टफुल थिंग. तुमने अपना रिज्यूमे इतना तगड़ा बनाया होना चाहिए कि सीजीपीए बस लिखनी है इसलिए लिख रहे हो, एंड इट्स द लीस्ट इम्पैक्टफुल थिंग, सो इट गोज टू द बॉटम राइट. That should be your target. Okay. Thank you so much, Bhaiya, for sharing your journey with such a clarity. I think student got not just a roadmap, but also the confidence that with consistency, right strategy, and self-belief, big tech dreams are absolutely possible. So with that, we close here Fang Weekend episode 2. And जिसको भी जो queries है, अपना mic on करके भैया से पूछ सकते हो. Even you can connect to him on LinkedIn. Yeah, if you have any questions, I can take up. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन, दिस वाज रियली इंसाइटफुल. बट अभी हम ना मतलब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे. हमारी कोशिश थी कि हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस पिक करेंगे यहाँ से. तो मैं मेजरली आपके लिए थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि इजी, जैसे एक क्वेश्चन मेजर आया है, बच्चों का डाउट है कि जो ML रोल्स है क्या उनके लिए बड़ी कंपनीज ओपन है, या उसके लिए वो PhD या मास्टर्स के स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं. मतलब ML रोल्स में यार मतलब व्हाट आई नो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम डीप माइंड पर्सपेक्टिव से डीप क्या होता है कि ML रोल इन जनरल कंपनी एक होता है, ML रोल सीधा ओपन एआई और डीप माइंड में. तो डीप माइंड लेवल पे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च या किसी कंपनी में रेलेवेंट एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं. सो आई वुड से इफ ML इज समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, ट्राई टू enter into a company and try to collaborate and contribute to some ML projects. Slowly you will eventually land up, क्योंकि तुम्हारे पास relevant experience आ जाएगा. आई डोंट थिंक सीधा डीप माइंड से मतलब अनलेस तुमने कुछ काफ़ी क्रेजी रिसर्च करा हो, तुमने कुछ क्रेजी मतलब एल्गोरिथम्स पे काम किया हो,
तब तक आई बिलीव थोड़ा सा हार्ड होगा. एंड अगेन कॉर्नर केसेस के हिसाब से आई डोंट रिकमेंड पीपल थिंग्स. एक बहुत मेजर क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज अ हायरेबल स्टूडेंट. लाइक एक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एंड में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, पीपल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स. तो एक हायरेबल स्टूडेंट क्या होता है, उसको क्या क्या आना चाहिए, लाइक एज स्टार्टर एंड इतना आना चाहिए, इसमें इतना ही, वो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. hireable student is somebody who is able to solve problems and build product out of it. तुम्हें actual engineering job में भी यही करना होगा. You will spend let's say 2 to 3 days in doing the problem solving and design documentation, and next 1 week let's say in implementation. So a hireable candidate is somebody who's able to solve problem and build products out of it. Hence you need to do problem solving and development work. ये मेरा पर्सनल डाउट था कि मतलब सपोज मैं जावा कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे जावा कितनी आनी चाहिए ताकि कोई बोले मतलब आ यार जाओ. तुम जावा कर रहे हो और जावा मतलब इफ आई आस्क यू कि तुम जावा में एक सर्वर लिख सकते हो नहीं लिख सकते, और तुम्हें जावा का सर्वर तुम नहीं लिख पा रहे हो, तो मतलब तुमने बस डीएसए करने के लिए जावा लिया है, दैट इज आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड क्राइटेरिया. सो वट एवर लैंग्वेजेस यू आर पिकिंग, उस लैंग्वेज की थोड़ा एप्लीकेशन ड्रिवन चीज़ें होनी चाहिए, और तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उस लैंग्वेज के हिसाब से होने चाहिए. तो आई बिलीव दैट इज़ अ गुड थिंग. मतलब अगर तुम्हें जावा आती है तो यू शुड ट्राई टू एक्सप्लोर मे बी स्प्रिंग बोर्ड, ऐसा कुछ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ऐसा नहीं होना चाहिए बस तुमने लैंग्वेज पढ़ी है डीएसए के लिए और कॉलेज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. रियली इंसाइटफुल. किसी और को कुछ भी अपने डाउट पूछने हो तो प्लीज या तो मैसेज कर दो या अपने हैंड रेज कर दो. अतुल राज, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हेलो संकेत भाई, कैसा आप? आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के अलावा ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनको हमें शुरू से ध्यान देना चाहिए जिन पे? बिहेवियरल राउंड चेक कर सकते हो, जैसे तुम्हें गूगल वगैरह के इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे. उसमें पीपल आस्क कि मतलब व्हाट हैज़ बीन सिचुएशन जहाँ पे तुमने कोई टीम लीड करी हो. मतलब टीम लीड ऐसा नहीं मतलब कि वो सोसाइटी वाली टीम लीड पर्सपेक्टिव से नहीं पूछते हैं वैसे, बट वो उस पर्सपेक्टिव से है कि मतलब किसी टीम या कंपनी में तुम काम कर रहे थे लेकिन वहाँ पे तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट था, हाउ यू आर लीडिंग दैट, हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग इट. तुम्हारे पास कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे यू आर इन अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन विद योर मैनेजर लेट्स से. क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे तुम और तुम्हारे टीममेट एक कॉमन प्रॉब्लम के कॉमन सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहे थे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस विच आर मोस्ट सिचुएशन बेस्ड. वो क्वेश्चन का आंसर तुम या तो कहानी बना के कर सकते हो या फिर यू कैन बी इनटू दो सिचुएशंस कि मतलब उस सिचुएशन में तुम थे, जो सिचुएशन में हुआ तुमने सही बताया क्योंकि उस सिचुएशन से तुम निकले होगे. तो आई बिलीव कि अगर तुम काम करोगे कहीं पे इंटर्न वगैरह करोगे तो ऐसे सिचुएशंस आएंगी और ऐसे सिचुएशन के जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे यू विल बी एबल टू आंसर इजीली. अदरवाइज तुम्हें क्वेश्चन के आंसर बनाने पड़ेंगे. आई बिलीव दिस इज समथिंग जो टेक्निकल स्किल्स के अलावा इंपॉर्टेंट होता है. ट्राई टू एक्सप्लोर बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या पूछती है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या रिमोट स्टार्टअप्स में बिहेवियरल क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं. ट्राई टू एक्सप्लोर देम, यू विल गेट द आइडिया. Another question is how does a MCA student approach product-based companies off campus? As मतलब वो कह रहा है कि IPO में MCA बच्चों को अलाउड नहीं है product-based roles के लिए बैठना. So what's your opinion? So I believe मतलब there are some shortlisting criteria. जैसे मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब क्राइटेरिया रखती हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया चट्टी वगैरह का. तो कुछ कंपनीज होंगी जो शायद MCA वगैरह का क्राइटेरिया रख रही होंगी. बट आई बिलीव इफ यू गो बाय द रेफरल राउट, अगर कोई तुम्हें रेफर कर देता है देन मोस्टली थिंग्स डोंट मैटर टू मच जितना मैं जानता हूँ. तो ट्राई टू मेक श्योर योर प्रोफाइल इज अगेन हायरेबल, यू आर इन अ हायरेबल सिचुएशन एंड पीपल आर ओके टू रेफर यू. यार मतलब ये बंदा सही तोड़ फोड़ लग रहा है और वी कैन रेफर देम. तो दोस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन दैट वे आई बिलीव. बट अगर तुम डायरेक्टली करियर पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारी फुलफिल नहीं हो रही है देन प्रॉब्ली तुम्हें नहीं आएगी कॉल. तो ट्राई कि तुम वो रेफरल वाले राउट से जाओ. मेरा ये डाउट था कि जैसे अभी हम लोग बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो ML का अभी काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, इंक्रीज हो गया, आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप बढ़ गई है. तो क्या हमें ML अभी एज अ बीटेक स्टूडेंट परस्यू करना चाहिए या फिर वो अभी भी मास्टर्स या फिर PhD वालों के लिए रिजर्व है? वो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए. मतलब एप्लीकेशन ड्रिवन वाला पार्ट तो डेफिनेटली करना चाहिए कि सो देयर इज अ गाय कॉल्ड एज नेम्ड एज जेरेमी हार्वर्ड. उसने एक लाइब्रेरी लिखी थी फास्ट AI, अभी भी चलती है काफ़ी. उसने वो लाइब्रेरी लिखी इस पर्सपेक्टिव से थी कि मतलब तुम
मतलब ऐसे कोर डीप न्यूरल नेटवर्क अगर नहीं भी जानते हो तो तुम एप्लीकेशन ड्रिवन चीज़ें ट्राई कर पाओ। तो आई बिलीव एप्लीकेशन ड्रिवन तो ट्राई कर ही लेना चाहिए कि मतलब तुम लेट्स से एग्जिस्टिंग कोई मॉडल है, उस मॉडल के बेसिस पे कोई एंड टू एंड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई। तो वो तो बेयर मिनिमम कर ही लेना चाहिए, उतना तो मतलब पहले भी लोग करते थे और आज भी मेरे को लगता है कर ही लेना चाहिए। देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि मतलब हाँ LLM वाले स्कोप में प्लेस मतलब सीन में व्हाट आर द न्यू थिंग्स कमिंग अप, थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखा, यू आर एटलीस्ट अपडेटेड अप टू थिंग्स। और फिर वंस द हायरिंग ट्रेंड आल्सो चेंजेस एंड पीपल स्टार्ट आस्किंग फॉर वेरी स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि आजकल चीज़ें इवॉल्व भी इतनी जल्दी हो रही हैं कि अभी बहुत ही तुम जैसे करियर पोर्टल्स पे जाके देखोगे तो देयर इज नॉट वेरी स्पेसिफिक थिंग्स रिटर्न कि मतलब LLM पर्सपेक्टिव से उनको क्या एकदम स्पेसिफिक चाहिए। तो वंस थिंग्स इवॉल्व तो तुम उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट आई बिलीव एप्लीकेशन ड्रिवन ML तो करना ही चाहिए। मतलब आई बिलीव आई एम टोटली इन फेवर, एवरीबडी शुड एक्सप्लोर। 4 साल बहुत बहुत टाइम होता है, इतना मतलब इतना कुछ काम भी नहीं होता है कॉलेज का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कर ही लेना चाहिए एक्सप्लोर। Anybody else with some questions or something? Doubts? भैया एक चीज़ और पूछनी थी कि अगर कोई कंपनी सेकेंड ईयर से इंटर्न हायर कर रही है तो वो उनका मेजर फोकस कहाँ पे होता है, प्रोजेक्ट्स पे या फिर किस सोसाइटी में कोई बड़ा? मोस्टली यार देखो सेकेंड ईयर के बच्चों का मतलब आई बिलीव जो बिग टेक में क्राइटेरिया होता है वो होता है कि मतलब बेयर मिनिमम थोड़े बहुत अगर एक दो प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, दे आर ओके टू एटलीस्ट इंटरव्यू। ठीक है, तो अगेन एज ए सेड, मैं कॉलेज में बिग टेक में मैंने इंटर्न करी नहीं, तो कि आधा रीज़न ये था कि सेकंड ईयर वगैरह में तो मैं अप्लाई नहीं करता था। थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत अप्लाई किया था, बट मतलब उतना सही सीन चलता नहीं था तो उस टाइम कि टीयर 3 से उतना ज़्यादा कॉल नहीं आती थी। सो आई वाज ओके टू मतलब वर्क मोर इन स्टार्टअप, और मतलब मैं स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस करता था। बट क्योंकि सेकंड ईयर के बच्चे से तुम क्या ही लिखवाओगे, मतलब वो तुम उतने बड़े कोड बेस में क्या ही कंट्रीब्यूट करवाओगे, मुझे तो वही समझ में आता। तो आई वुड से कि मतलब अगर एक बेसिक सेट ऑफ बेसिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वगैरह थोड़ी बहुत करी है, यूर वो मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमने एक्सप्लोर करा है, दैट इज गुड इनफ। मतलब सेकंड ईयर का तो इतना क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, थर्ड ईयर से थोड़ा पीपल स्टार्ट लुकिंग मोर रिग्रेसली, आई वुड से। हेलो, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि माइंडसेट जो है वो ओवरआर्चिंग होना चाहिए, कंपनीज बाकी सारी कंपनीज जो सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है वैसा होना चाहिए। तो जिनका लाइक निशेस वगैरह में इंटरेस्ट होता है, एम्बेडेड वगैरह में, सिस्टम डिजाइन या ML वगैरह भी हो गया, तो इनको कितना कितना मतलब कितना टाइम देना चाहिए जब करियर फोकस्ड हो? मतलब सिस्टम डिजाइन तो देखो नीश नहीं होता है, सिस्टम डिजाइन तो सब में ही चाहिए होता है। जैसे नीश एज इन जैसे एम्बेडेड है, मोबाइल है, देखो मतलब आई कैन नॉट कमेंट अबाउट एम्बेडेड क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है एम्बेडेड वगैरह वाले स्कोप में, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। मोबाइल वगैरह जैसे मोबाइल एक बढ़िया नीश होती है, उसमें काफ़ी मेरे दोस्त हैं। तो आई बिलीव मतलब तुम जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम अपने एक नीश के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, बट और मतलब हो सकता है आगे जाके उस नीश के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज भी हो जाए कि मतलब उस नीश में हायरिंग ज़्यादा हो जाए कम हो जाए। बट ओवरऑल व्हेन यू विल रियलाइज कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम मोबाइल कर रहे हो तो मोबाइल के सारे कॉन्सेप्ट्स जनरल वेब फ्रंट एंड में भी लगी जाते हैं। अगर तुम फ्लटर से फॉर एग्जांपल चीज़ें एक्सप्लोर करोगे या रिएक्ट नेटिव से एक्सप्लोर करोगे, यू विल रियलाइज कि नॉर्मल रिएक्ट लिखने में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है। तो आई वुड से कि काफ़ी लोग हैं जो नीश के हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो इट्स गुड यू इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग डेव तो तुम नीश के हिसाब से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मेक श्योर जो जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं यू कीप दोज इन माइंड। तुम एक मतलब व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट यू ट्राई टू सॉल्व रियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वो एक स्पेसिफिक नीश में भी इनफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगी, मोबाइल वाले नीश में भी तुम्हें इनफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेगी। बैठ के बस मतलब UI पे बटन लगा लगा के API कॉल करने में ज़्यादा कुछ होएगा नहीं। रादर यू ट्राई टू पिक अ मोबाइल प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल और एंड देन सी कि व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी इन दिस वन, एंड उस कम्प्लेक्सिटी को तुम खुद से उस प्रोजेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश करो। आई बिलीव दैट शुड बी द आइडिया, एंड आई एम ओके इफ समबडी इज इनटू टू मच ऑफ द नीश। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो मोबाइल डेवलपमेंट ही करता था कॉलेज में, and he joined Urban Company as a mobile dev. Later, he joined Adobe as a mobile dev. Then he joined Meta, and in Meta also he works on the mobile aspect of the things. तो ऐसे नीच में लोग पूरा अपना करियर बढ़िया बिल्डअप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वुड से इफ यू आर इनटू अ पर्टिकुलर नीश एक्सप्लोर दैट। तो सुपरफिशियल के अलावा मतलब डीप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, सॉरी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आई मीन सुपरफिशियल चीज़ों के अलावा जो नीश में डीप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व करना है। हाँ, मतलब उस पर्टिकुलर नीश में ट्राई टू एक्सप्लोर कि मतलब कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, एक्सप्लोर दैट, ट्राई टू सॉल्व दैट, ट्राई टू कोड इट।
खुद से कोड करो, मतलब पढ़ के बैठ के वो नहीं होना चाहिए, उसको पूरा एंड टू एंड कोड करो, एंड टू एंड मतलब रनिंग स्टेट में लेकर आओ, दैट विल गिव यू गुड लर्निंग. Moving towards the end, I know we stressed you and stressed it, but it was really insightful. We learned more than a semester here just at this meet, so thanks a lot for this. Any suggestion for us from your side? By the way, there was a special request. As one of my friends, you used to you teach him Python. So Shashwat, what Hello, sir. Nice to listen to you. You actually taught me DSA and Python in Coding Ninjas. So I was really you taught it really well. So thank you for that. No worries. Thank you. any suggestions for us, sir? As I said, like, try to be a better engineer and Yes. try to apply more. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Cool. Thank you, everyone. Bye. Bye bye. Bye, sir. So guys, how was this session for you all? You can give us the feedback also, क्योंकि हमारा टेन्योर तो खत्म हो गया, अब जूनियर्स ही हैंडल करेंगे, so they will also work on it and improve more. We will welcome all the feedbacks, reviews. I hope इस बार सबकी queries resolve हो गई होंगी. I guess in these 2 episodes either it's Meta, Google, Microsoft, LinkedIn, the on ground reality, वो जो reality check, थोड़ा सा exposure, on ground reality क्या है from interview perspective, student perspective. Yeah. So guys, अभी भी आपको Is कुछ it पूछना है तो anger? आप पूछ सकते हैं, ऐसा हाँ जी. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. but there is another banger announcement for you all. So stay ready for 26th and for blockchain. If you're interested in blockchain, stay ready for 26th. You will know soon. और मतलब ब्लॉकचेन में आपका इंटरेस्ट है नहीं है, आपको ट्राई करना है, आपको एक्सपोजर चाहिए कि ब्लॉकचेन होता क्या है, तो वो उन सब चीज़ों के लिए ठीक है. लुक फॉरवर्ड टू 26th. And everyone fill out the sheet. Although हमारे पास attendance sheet आ गई है, कौन कितने पैसे आ रहा है, but हाँ, still fill out the sheets and we will give you both certificates very soon. It's already signed, so don't worry about the hours. R is not the concern. Growth is. And a Guys, special please. message to girls also. I am the chairperson of ACMW of 2026 batch. So हम बहुत ही जल्दी girls के लिए hiring form भी निकालेंगे. You can fill out to that. In ACM Women you will get a networking opportunity, meetups, नई skills सीखना. So you can be open to apply it. We will take your interviews online. Yes. Suraj, what do you want to for what you want resources? मतलब क्या सीखना है? आप अपना माइक ऑन करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम. हेलो मैम. हेलो विशाल. हेलो. तो सर मेरी ना काफ़ी ज़्यादा ना इंग्लिश वीक है, तो कम्युनिकेशन तो मुझे इम्प्रूव करनी है. तो आप लोगों की तो काफ़ी बेटर है, तो क्या आप मतलब शुरू से ऐसे ही थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. बट मतलब मेरी क्या टेक्निक थी, मतलब जब मैं छोटा था, कोविड ईयर्स मेजरली, कुछ मत करो, एक इंग्लिश मूवी लगाओ, उसमें सबटाइटल्स लगाओ और देखते जाओ, हो जाएगा. इट्स फॉर प्रैक्टिस. तुम धीरे करते जाओगे, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे. लैंग्वेज कोई स्किल नहीं है. इंग्लिश मूवीज से स्टार्ट करो, इंग्लिश मूवीज, टीवी शोज. मतलब अभी तो इतना टाइम नहीं होगा, तो थोड़ा कभी कभार देख लिया, उससे तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा. और फिर उसके बाद अपने दोस्तों में जैसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते रहो, ट्राई करते रहो, धीरे धीरे करके अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. बोलना और सुनना इज इम्पोर्टेंट. वो कोई स्किल नहीं होती है, वो एक मीडियम होता है. तो मीडियम में तुम जितना रहोगे उतना ही तुम्हें आता जाएगा धीरे धीरे. अगर मीडियम को तुम एज अ स्किल सोच के सीखना है, कोर्स लेना है, तो ऐसे नहीं होता. तो एक्सपोजर में घुसो, पेपर पढ़ो, उसके बारे में कुछ भी पढ़ लो, मैसेज करते रहो, मूवीज देखो, कुछ भी हो जाएगा. बात मीडियम की होती है, कंफर्ट की होती है. दोनों में से एक चीज़ पहले करो सूरज,
सी और पाइथन। बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज तो कम ही लेंगे। बेसिक कोर्सेज में तुम्हें चुनने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। सर्च करो फुल पाइथन कोर्स, फुल सी कोर्स, तुम्हें बहुत सारे क्रेडिबल कोर्स मिल जाएंगे विद गुड रिव्यूज एंड दे ऑल इक्वली गुड। वो एक अच्छा रिसोर्स तब डिफरेंशिएट करता है जब तुम काफी नीश जाते हो, काफी डेप्थ में जाते हो। Anybody else? So guys, Any other queries, guys? ये गूगल फॉर्म के रिगार्डिंग एक क्वेरी थी। हाँ बोलो ज्ञानू। ये जो इंस्टाग्राम पे आपने ये शेयर करने को बोला है ना कि स्क्रीनशॉट, हाँ तो हाँ, व्हाट इफ समवन इज यूजिंग इंस्टाग्राम, क्या हुआ? अगर किसी का अकाउंट ही नहीं इंस्टाग्राम पे तो मतलब आई डोंट हैव वन। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है? यस, इट्स अ अरे कंपल्सरी तो फील्ड, दैट्स व्हाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वही shows, उसमें कुछ भी डाल के फिर तो मिल जाएगा एक्सटेंशन। एनए लिख दो, एनए एनए। अपनी होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके डाल दो उसमें, ओके, अगर इससे अकाउंट नहीं है। ठीक है, अपना आधार कार्ड एसीएम एंड ACMW का ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट डाल दो। अच्छा, ओके, थैंक यू। So this is it for today, guys. You all can leave and sleep peacefully and work hard from tomorrow. Looking forward for a better future. Good night, guys. आई गेस सबकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं और जितने भी डाउट्स वगैरह थे पूछ लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका इंतजार कीजिएगा। ऐसे ही फैंग वीकेंड चलता रहेगा हमारा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, और आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्टिव ऑडियंस है हमारे लिए। सो थैंक यू एवरीवन, और अब आप मीट लीव कर सकते हैं।